خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ۔ مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین، الحمدللہ ہم روزانہ ہمارے پیارے پیارے معتکفین اسلامی بھائیوں کے جذبات، احساسات و تاثرات دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ آئیے آج دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں۔ تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے، تجھ میں نازل حق تعالیٰ نے کیا قرآن ہے۔ رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا، رمضان مرحبا۔ ابھی حلقوں میں لباس پہنے کے اس کے مدنی پھول سکھائے جا رہے ہیں کہ لباس کس طرح رکھیں گے، کس طرح پہنیں گے، کہ پہلے کون سا ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے، کون سے پہلے ہم نے شلوار میں پانجہ ڈالنا ہے۔ سنت اور آداب میں آج کیا سکھایا جا رہا ہے؟ لباس پہننے کا طریقہ۔ اسلام بھائی خوشی سے سیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ ماشاء اللہ عز و جل، اسلامی بھائی بڑی خوشی سے بڑی توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، ان کے اندر ایک بہت جذبہ ہے سیکھنے کا۔ سب سے پہلے اگر قمیض پہننی ہے تو سب سے پہلے ہم دایاں ہاتھ اس میں ڈالیں گے، پھر اس کے بعد بایاں ہاتھ ڈالیں گے۔ اگر ہم نے شلوار پہننی ہے تو اس سے پہلے سب سے پہلے ہم سیدھا پاؤں وہ ڈالیں گے، پھر اس کے بعد الٹا پاؤں وہ ڈالیں گے۔ الف با تا اس طرح سے پہلے میں نے قرآن پاک نہیں پڑھا تھا۔ نہیں کوئی شرم نہیں، اچھی بات ہے، پہلے مجھے نہیں پتا تھا اور اب میں انشاءاللہ جو ہے پورا تجدید کے ساتھ پڑھوں گا قرآن پاک۔ میں ڈرائیونگ کرتا ہوں، بنگلے پہ گاڑی چلاتا ہوں۔ میرے بھائی نے میرا ذہن بنایا کہ آپ فیضان مدینہ میں جا کے بیٹھو۔ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا ایک ٹائم کی بھی، تو انہوں نے میرے سے بولا کہ آپ جاؤ یہاں پہ، انشاءاللہ آپ کا دل لگے گا بہت۔ یہاں آنے کے بعد اللہ کا شکر ہے کہ یہاں سے نہ باہر جاتے ہیں نہ کہیں جاتے ہیں، نماز پڑھنا ہے، اعتکاف میں بیٹھنا ہے اور روزے رکھنا ہے۔ نشے بھی کرتے ہیں لوگ، سمجھنا ڈرائیونگ کے اندر کافی لائنیں ایسی ہوتی ہیں، بھی اسی طریقے سے ڈرائیوروں کے ساتھ بیٹھتے تھے، ایک ٹائم کی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے، غلط صحبتوں میں سمجھے نا الٹی سیدھی حرکتیں کرنا۔ ان کی صحبت کی وجہ سے میں نماز سے بھی بالکل دور ہو گیا تھا، روزوں سے بھی کسی بھی سمجھے نا کتنے سالوں سے روزے نہیں رکھے تھے، نماز بھی نہیں پڑھی تھی۔ یہ تو اب یہاں ان کے پتہ چلا ہے کہ کتنی فضیلت ہے اس چیز کی۔ میرے بھائی کافی میرے کو بولتا تھا، وہ نماز کے لیے، چلنے کے لیے، فیضان مدینہ سمجھے اجتماع میں لے کے آنے کے لیے وہ مجھے بولتا تھا، میں بھاگ جاتا تھا، نکل جاتا تھا، وہ مجھے ڈھونڈ رہا ہوتا تھا۔ یہاں ان کے جب اپنے مدنی بھائیوں سے ملے، یہاں سے پھر بابا جان کے تو زیارت کی، تو پھر مدینہ مدینہ ہو گیا انشاءاللہ کہ بس اب ایسا ہوا ہے کہ داڑھی شریف بھی رکھ لی ہے اور انشاءاللہ 5 ٹائم کی نماز بھی پڑھیں گے۔ بہت اچھا لگ رہا ہے اور بہت دل کو جو ہے نا سکون مل رہا ہے، بہت سکون مل رہا ہے۔ میں شروع میں جو ہے نا وہ گلزار حبیب میں آتا، جب نیا دعوت اسلامی بنا تھا نا، میں چھوٹا ہوتا تھا، میں ادھر اپنے عزیز رشتہ داروں کے ساتھ آتا تھا۔ پھر کئی عرصے سے میں صرف دعوت اسلامی کے علاقے کے جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ آتا رہتا تھا۔ بہت اچھا انداز ہے، ایسا انداز میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ حالانکہ ہم سے جو ہے نا کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہے، غلطیاں بھی ہو جاتی ہے، مگر وہ مسکرا کے جو ہے نا ہمیں اصلاح کرتے ہمارا۔ یہاں پر آ کے الحمدللہ مجھے بہت اچھا لگا، جو ہی میں سیڑھیاں اوپر چڑھا اور میری کیفیت چینج ہو گئی، ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو گیا۔ میری اہل سنت کا فیض ہے، اللہ کا پاک کا شکر ہے کہ ادھر دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ پہلے جیسے میں تھا اب میں ایسے نہیں رہوں، پہلے ہر کسی سے لڑائی، بد اخلاقی، اب میرا دل کی دنیا ایسے بدل گئی ہے کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ میں ادھر سے کیسے جاؤں واپس۔ ڈرائیونگ کا میں کام کرتا ہوں، 1 مہینے کے اختتام میں ادھر آیا ہوں۔ یہاں پر آگے میرے کو بہت اچھا ماحول لگا ہے اور انشاءاللہ میں نے یہ ذہن کرا ہے مہینے کا کر کے احتساب جو ہے نا پھر یہیں سے سیدھا قافلے میں جانا ہے 1 مہینے کے۔ نماز روزے کی یہاں پر پابندی ہے، یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے اسلامی بھائیوں کا، ماشاءاللہ اچھی، اس سے کہتے ہیں باہر اتنا مول نہیں ہے جتنا یہاں پر اچھا مول ہے۔ بہت فرق ہے، یہاں پر لہجہ اچھا ہے اسلامی بھائیوں کا، اچھی باتیں بتاتے ہیں، سب کچھ ہے۔ باہر تو بے حیائی ہے، ہر چیز ہے، وہاں مول صحیح نہیں ہے باہر کا۔ سردار آباد کس شہر کو کہتے ہیں؟ فیصل آباد۔ یہ ہمارے پیر و مرشد فرماتے ہیں سردار آباد، اور ہمارے ادھر محدث اعظم پاکستان ہے مولانا محمد سردار رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا مزار شریف ہے، اس لیے ان کی نسبت سے ان کو سردار آباد کہتے ہیں۔ میری والدہ نے کہا آپ ادھر جاؤ، پیر و مرشد کے قدموں میں ادھر دعا کرنا۔ پھر سب کی زیارت ہوئی؟ جی الحمدللہ، سحری بھی کی ہم نے ان کے ساتھ۔ مدنی ماحول ہے،
باپا کا بیان، مدنی مذاکرہ اور نگران شورا کا بیان ماشاءاللہ بہت اچھے لگتے ہیں، اس لیے ہم ادھر آ گئے۔ ادھر اپنے گھر میں بھی دیکھتے ہیں پر مگر جو سامنے ہوتا ہے وہ بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہاں بس روزہ رکھ کے نماز وغیرہ پڑھتے تھے، سو جاتے تھے۔ ادھر ماشاءاللہ ہلکے لگ رہے ہیں، وہ علم دین سیکھ رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد جو ہے نماز تہجد، اشراق الچاش ادھر کبھی بھی نصیب نہیں ہوتی تھی، ادھر الحمدللہ نصیب ہوتی ہے۔ کھجور روٹی سیری کرنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں، کھجور روٹی سیری کرنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں۔ یہ مجھے ذرا بتائیے گا کہ آپ اسلام بھائیوں کو دعوت دے رہے ہیں کھجور روٹی کھانے کے لیے یہاں تشریف لائیں، اس کی وجہ کیا؟ امیر سنت کے فرمان پر یہ دعوت دی جا رہی ہے کھجور روٹی کے سیری کرنے اسلامی بھائی یہاں تشریف لائیں۔ لوگ آ بھی رہے ہیں یا جی آ رہے ہیں الحمدللہ۔ اسلام بھائی یہ کھجور کے جو تھال رکھے ہوئے ہیں آپ نے یہاں پر، یہ کس مقصد کے لیے رکھے ہوئے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے پچھلے دنوں مدنی مذاکرے کے اندر کھجور روٹی سے سحری کرنے کی ترغیب ارشاد فرمائی تھی، تو یہ اسی لیے یہاں موجود ہے کہ اسلام بھائی بھی یہاں موجود ہیں، تو یہ ان کے لیے موجود ہے کہ یہ کھجور روٹی سے سحری کریں گے انشاءاللہ۔ سمجھ 7 کھجور ہے، گن کے کیوں دے رہے ہیں؟ یہ اس کا ایک عدد بتایا امیر علیہ سنت نے بسم اللہ کے، تو اس کی نسبت سے 7 کھجور ہے۔ یہ لسٹ ان اسلامی بھائی کی جو کھجور روٹی تحریک میں شامل ہیں، یہ لسٹ انشاءاللہ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی۔ کیسے ذہن بن گیا آپ کا میں کھجور اور روٹی کے ساتھ شادی کروں؟ بس باپا نے فرمایا اور ہمارا ذہن بن گیا۔ یہاں مطلب اعتکاف کے لیے ہم آئے، مطلب اعتکاف اچھے، مطلب ہم ادھر آئیے، بالکل بہت اچھا لگتا ہے جی، بہت اچھا لگتا ہے، بہت خوبصورت ہے جی، یہ سارے چیز بھی خوبصورت ہے جی۔ قرآن پاک کا تلاوت بھی ہوتا ہے، تراویح بھی ہوتا ہے، یہ سب ماحول جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے جی۔ جس برتن میں کھانا کھایا جائے اس کو صاف کرنا چاہیے، بزرگان دین کا طریقہ ہے۔ گھروں میں ایسا ہوا کبھی؟ گھر میں نے کبھی ایسا نہیں کیا، یہاں پر میں نے کیا۔ کیسے ذہن بنا یہ برتن صاف کرنے کا؟ یہاں پر آئے، مدنی ماحول دیکھا یہاں کا، اور پھر میرا ذہن بنا کہ مجھے بھی اس طرح کرنا چاہیے، ثواب ملتا ہے، برتن دھو کر پینے سے غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اتقاف کا ذہن پہلے تھا تو نہیں، لیکن گھر والوں کو میں نے منایا بھی، گھر والے مانتے نہیں تھے کہ حالات خراب ہیں۔ والد صاحب کو بار بار اس بات پہ ایگری کیا ہے کہ نہیں مجھے جانے دیں، ہو سکتا ہے کہ میری زندگی سنور جائے۔ میں مطلب کہ پہلے ہوتا تھا کہ میں نماز بھی نہیں پڑھتا تھا، اتقاف تو دور کی بات ہے، روزہ بھی نہیں رکھتا تھا میں۔ فجر کی اذان ہوتی تھی تو میں سو جاتا تھا، اور عشاء کی نماز جب ہو جاتی تھی تب میں اٹھتا تھا۔ یہاں آنے سے یہ ہوا کہ ایک تو 5 وقت نماز کی پابندی ہو گئی ہے، دوسرے ماشاءاللہ روزے بھی اس سال رکھ رہے ہیں۔ بپا کا انداز جو ہے نا وہ مجھے بہت بھا گیا۔ جو شبرات کا مدنی مذاکرہ تھا نا، شبرات والے دن ہوا تھا، تب اس مدنی مذاکرے میں بیعت ہوا ہوں۔ آج کے مدنی مذاکرے میں خوش اخلاقی سے گفتگو کرنے سیکھی ہے، ہنس کے گفتگو کرنی ہے دوسرے اسلامی بھائی سے۔ جیسے پپا فرماتے کہ ایک ہنسی سے اگلے کی زندگی بدل سکتی ہے، تو اس سے ہنس کے گفتگو کرنی چاہیے ہر اسلامی بھائی کے ساتھ۔ کیا نیت بنی یہاں پر آنے کے بعد؟ کچھ ایسا ملا ہے؟ آن لائن درس نظامی کروں گا انشاءاللہ۔ ادھر بیانات سنے ان سے، اور میرے بھائی نے ذہن بنایا، ماموں کے بیٹے نا جو انہوں نے ذہن بنایا، گھر والے بھی مان جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ میرے سننے سے دروازہ کے دعا کریں وہ مان جائیں۔ میرا کام ہے الیکٹرونکس کا شروع سے، تقریباً 30 سال پہلے سے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو کرتے کرتے اب جلا لیا نیٹ کیفے کھولنے کی۔ میرا بیٹا جو ہے نا پڑھا لکھا باہر الحمدللہ، تو میں نے اس کے لیے نیٹ کیفے کھول دیا۔ اب رسک جو ہے نا بڑا عجیب سا لگنے لگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نیٹ کیفے کمی، تو پھر جو ہے نا میں نے چیز ٹافی کی دکان کھولی، وہ اس سے ذرا ہٹ کے تھا۔ پھر میں نے گھر والوں سے ذکر کیا کہ میں جانا چاہتا ہوں ادھر، مطلب دعوت اسلامی والے بڑے مدرسے میں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جائیے گا۔ تو جیسے قریب آئے دن 8 10 15 دن لیتے تھے، تو میں نے گھر ذکر کیا، میں نے کہا آپ جانا ہے، میں نے میرے جانے کا ٹائم ہو گیا۔ بولے آپ پیسوں کی فکر نہ کریں، پیسے آپ کے ہمارے پاس بنے پڑے۔ وہ کریانہ والی دکان سے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے کر کے میرے لگتے تقریباً 2200 بنائے انہوں نے، وہ میں لے کے ادھر آیا ہوں۔ میں اس کام کو ختم کروں گا۔ میں ڈرسمل خان میں پشتون جو قومی جرگے ہوتے ہیں، میں ان کا پریزیڈنٹ ہوں۔ میں پچھلے سال بھی ادھر آیا تھا، بابا کے ساتھ افطاری کیا، اور افطاری میں اس نے نوالا بھی دیا الحمدللہ۔ اور وہاں پہ بس میرا ایک ذہن ایسا تبدیل ہو گیا کہ دنیا سے میرا دل کٹ گیا۔ یہاں پہ تو بہت زبردست ماحول ہے۔ دیکھیے اسلام ہمیں امن، محبت اور اخلاق کا درس دیتا ہے۔ یہاں پر صرف ہم نے یہ نہیں کہ ہم نے صرف وضو سیکھا ہے یا نماز، یا ہمارے اندر تو غلطیاں بہت تھے، اور غلطیوں کا احساس اس وقت ہوا جب ہم ادھر آئے۔ مدنی قاعدہ، میں نے کہا کہ میں تو بہت اچھی طریقے سے قرآن شریف پڑھتا ہوں۔ جب میں ادھر آیا ہوں میں نے دیکھا تو میرے قرآن شریف بھی کمزور تھا، میرے نماز میں بھی فرق تھا، میرے وضو میں بھی فرق تھا، میرے اندر بہت سی کوتاہیاں تھی، بہت سی کمی تھی۔ دعوت اسلامی مجھے اس لیے پسند ہے کہ دعوت اسلامی ایک ہوتا ہے کسی کو بتانا، بولنا، لیکن عمل نہیں کرا۔ دعوت اسلامی یہ چیز ہے کہ خود عمل کرتا ہے، عملی طور پہ یہ کام کرتا ہے دعوت اسلامی میں۔ دیکھیں یہاں پہ کتنا محبت اخلاق ہے، یقین کر میں خود
अपने आप को कहता हूँ कि मैं किसी और दुनिया में था। मैं पछता रहा हूँ कि हमने जिंदगी फजूल गुजार दी, ऐसे गुजार दी। मैंने अपनी जिंदगी का 1 साल 12 माह मैंने दावत इस्लामी के मदनी काफिले को दे दिया, वक़्फ़ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये चौथा माह है मेरा। मैं दावत इस्लामी की मदनी माहौल में हूँ, 12 माह में हूँ। बाबा का तो मैं आशिक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यकीन कर माँ बाप से ज्यादा मोहब्बत है। बाबा जैसे आदमी तो सदियों बाद पैदा होता है। बाबा ने कहा कि अमामा सिर पे बांधो सवाब है। मैंने उसी वक्त से ये पगड़ी देखो पहनता हूँ। बाबा जो किसी को बोलता है डायरेक्ट असर करता है। इसकी बात में असर है, इसकी मुस्कुराने में असर है, इसके रोने में असर है। भाई सारी दुनिया रोता है उसके रोने में और बाबा के रोने में फर्क है। अल्लाह ताला इसकी उम्र, अल्लाह ताला इसकी इल्म में बरकत डाले। ऐसा शख्स तो सदियों बाद सदियों में पैदा होता है। कितने लोग नौजवानों को गुनाहों से निकाला आए और नेकी की तरफ। ऐसे नौजवान मैंने देखे जो कलीम शेव करते थे, आज उसकी दाढ़ियां हैं। पिछले साल मैं देखे कलीम शेव, इस मरतबा देखे उसकी दाढ़ियां हैं। पिछले साल वो फर्ज नमाज नहीं पढ़ते थे, इस साल वो नफली इबादत भी करते हैं, तहज्जुद भी करते हैं, इशराक भी करते हैं। दाढ़ी की नीयत माहौल देखकर बनी है। बाबा जाने के मुज़ाकरे और निगरान की मोहब्बत नहीं, अभी इंशाल्लाह कभी नहीं कटेगी। किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये जब पढ़ रहे थे कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा था। इंशाल्लाह इमामा शरीफ बांधेंगे इंशाल्लाह। निगरान शुरा ने आज फरमाया कि आपस में हम हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। कोई अगर आपको अगर मार भी रहा है, पीट भी रहा है, इस तरह से अगर आप उसको मुस्कुराएंगे तो एक टाइम वो भी सोचेगा यार कि मैं तो इस तरह कर रहा हूँ और मेरे को रिस्पांस इस तरह का मिल रहा है, तो इंशाल्लाह मदीना मदीना हो जाएगा। तो मामा शरीफ से जाएंगे और मुस्कुराते रहेंगे। इंशाल्लाह अगले साल लोग देखेंगे। और मैं ये गारंटी अपनी दे रहा हूँ कि जब मैं दाढ़ी मुबारक पूरी ये मुट्ठी रखूंगा तो लोग मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। रिसाला ज़ियाई दुरूद व सलाम पेज नंबर 3 फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नंबर 8। जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक उसकी दोनों आंखों के दरमियान लिख देता है कि निफाक को जहन्नम की आग से आज़ाद है और उसे बरोज़ क़यामत शुहादा के साथ रखेगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद नवैतु सुन्नतल इतिकाफ। आज 1440 हिजरी के माह रमज़ान मुबारक की 7वीं रात है। आलमी मदनी मरकज़ फैज़ाना मदीना बाबुल मदीना कराची में कसीर मोतकिफ़ीन जमा है। मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला। अब सवाल कीजिए और सवाल का जवाब वो भी सवाब दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बंद पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश की जाएगी। भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएं शाएं करता अपने मौके पर बिला वजह अड़ता नहीं, बल्कि शुक्रिया के साथ रुजू करता पाएंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आज हमारे साथ पाक सुल्तानी काबीना कमालिया पंजाब और पाक सरिंदी काबीना शिकारपुर बाबुल इस्लाम सिंध खुसूसियत के साथ शरीक है। ये शिकारपुर के आशिकान रसूल हमारे सामने स्क्रीन पर माशाअल्लाह। सब चांद रात को मदनी काफिले में सफर कर जाओ इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। ये सरदाराबाद के भी आशिकान रसूल हमें नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। मदनी सहरा मानसेरा खैबर पुख्तूनख्वा के हमारे आशिकान रसूल भी नजर आ रहे हैं माशाअल्लाह। कमालिया पाक सुल्तानी काबीना सुभान अल्लाह, ये भी स्क्रीन पर है
सबको मरहबा जी आया नू बखैर रागले भले करे आया सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हम लोग शुक्र की बजाय पुरशिकवा ही नजर आते हैं। आपसे ये अर्ज है कि हम शुक्र बजा लाने की आदत कैसे डालें। अल्लाह ताला की नेमतों पर गौर फरमाएं कि अगर ये ना होता तो क्या होता, वो ना होता तो क्या होता। हम लोग दुनियावी चीज़ों पर दुनियावी फायदे नुकसान के लिए तो बोलते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, किराए का मकान है, हमारे पास ओनरशिप का मकान नहीं है, मेरी अपनी दुकान नहीं है, मुझे रेहड़ी चलानी पड़ती है, ये सब हम सोचते हैं। लेकिन हकीकत में अल्लाह की नेमतों की तरफ गौर करें ना तो इतनी नेमतें हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। सबसे बड़ी नेमत ईमान है, ये ना होता तो क्या होता। तो अब शुक्र अदा करेगा, अल्लाह करीम तेरा शुक्र है कि तूने हमें ईमान की नेमत से नवाजा। अगर खाना मुंह के जरिए पेट में ना जाता तो क्या करते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि ये नेमत भी मिली है। फिर खाना पेट में जाके रुक जाता, बाहर ना निकलता तो क्या होता, तो निकल भी जाता है, ये भी अल्लाह का शुक्र है। सांस का आना जाना, पानी पीना, बाहर निकलना, पसीने के जरिए, पेशाब के जरिए पानी तो निकल जाता है ना, आंसुओं के जरिए, नाक के जरिए, थूक के जरिए, सांस के जरिए भी पानी निकलता है। तो ये ना निकलता तो सारा बंदा फिर जिंदा नहीं रह सकता। तो यूं रूए में समझो के नेमतें ही नेमतें, और जितना अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करें कम कम और कम है। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र अदा करोगे अल्लाह और देगा, ये आयत है। इसलिए वो जितना हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे मजीद नेमतें मिलेंगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। जबारत तारी भावलपुर से अर्ज कर रहा हूँ। या सैयदी, मेरा ये अर्ज है आपकी बारगाह में, आजकल देखा जाता है अमूमी तौर पर कोई शादी हो या कोई तकरीब हो या घर में किसी किस्म का प्रोग्राम हो तो मुअज़्ज़िज़ तरीन और पर्देदार घराने, समझे जाने वाले और देखे जाने वाले, यानी कि ऐसे किस्म के भी अफराद पाए जाते हैं। लेकिन जब शादी हो, कोई ऐसी खुशी या ऐसे ऐसा कोई प्रोग्राम का मौका हो तो घरों में शादी के मौके पर जैसे कि रस्म हिना की महफिलें होती हैं, या जैसे कि मिसालों में दूध पिलाई की रस्म होती है, दूल्हा औरतों की झुरमुट में आके दूध पिलाई की रस्म और जूते छुपाई की रस्म, ऐसी ऐसी रस्में होती हैं। अब इस रस्म के हवाले से मालूम करना है कि इसके बारे में आप रहनुमाई फरमा दीजिए जज़ाकल्लाह, ताकि हमारे माशरे में अल्लाह करे ये ऐसे मामला से भी हम अल्लाह करे हम बच जाएं। गुनाह भरी रस्में तो बहुत होती हैं, जूता छुपाई, तो हिना की रस्म, इसमें भी बेरम ना बेरम, गाने बाजे, ढोल ढमक के और इस तरह की, यानी कि बहुत खुराफात। ये वाकई जो पर्दानशीन कहलाते हैं वो भी शायद ये समझते हैं यार खुशी का मौका है, तो अस्तगफिरुल्लाह, खुशी का मौका हो या गमी का मौका हो, हमें शरीयत का दामन नहीं छोड़ना है। तो जो रस्में शरीयत से टकराती हैं उनसे बचना होगा, और जो रस्में अगरचे सुन्नत से साबित ना हो, सहाबा के दौर में भी उनका आता पता ना हो, लेकिन शरीयत से ना टकराती हो तो वो जायज़ है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंटियों को जब घर में झाड़ू देते हैं तो चूंटियां उससे मर जाती हैं, तो इनको मारने से कैसे बचाएं? क्या इनको मारने पर भी कोई गुनाह मिलेगा? बिला वजह मारना तो गुनाह है, मकरूह तहरीमी है। अब यह कि झाड़ू देने में वाकई असल इन बिचारियों पर कोई रहम नहीं खाता यार, को बच्चे भी बिचारियों को कुचल रहे होते हैं, लेकिन ये हुस्सास मखलूक है और हदीस पाक में इसकी तो बिल्कुल सराहत है कि अल्लाह का जिक्र करती है मखलूक, तो पाँव तले रोनते होते हैं और मार कुचल बिचारियों की, तो ऐसा ना किया जाए, बल्कि झाड़ू देने का कोई और हिसाब किताब ऐसा हो कि जिससे चूंटियां चली जाए, जैसे ऊपर से कपड़े की मोटी चादर पकड़ के दुआ से, मगर ये जमीन पर रगड़ नहीं खाए चादर वरना तो मर जाएंगे, इस तरह मतलब जोर जोर से इसको हवा के झटके दे, तो इस तरह चूंटियां उड़ उड़ कर आगे पीछे हो सकता है कि हो जाए। अब इसमें भी ये खतरा है कि बिछड़ गई तो मुश्किल में आ जाएंगी, कि ये रहती हैं अपने खानदान और कबीले के साथ, तो एक ही तरफ इनको डाला जाए,
यूं झटक झटक के वो हवा से सिर्फ, रगड़ से नहीं, लेकिन मर जाएंगे। ये एक जैसे अपनी आइडिया सर्च कर रहा हूँ, पढ़ा कुछ नहीं इसमें। बचना चाहिए कि ये मर जाए, लेकिन बाजों का आदमी मजबूर हो जाता है। हमाम में चल रही है, नहाना भी है, देर भी हो रही है, या देर नहीं भी हो रही तो कितनी देर आदमी इंतजार करे। हाथ धोना है, बेसिन में चींटियों की लाइन लगी हुई है, क्या करें? जाती नहीं आसानी से, चली भी जाएंगी तो नाली के अंदर उतरेंगी। अब हाथ धोएंगे तो पानी तो उन्हीं पर गिरना है, वो बहा के ले जाएगा। अब खुदा जाने ऐसी मजबूरी में क्या करना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला। से सुना था कि तसव्वुफ जो है वो लिखने की नहीं, करने की चीज है। तो या सैयदी, ये तसव्वुफ या जो सूफिया होते हैं, इसके क्या मतलब है, और क्या ये औलिया अल्लाह के दर्जों में से एक दर्जा है? मदनी फूल अता फरमा दीजिए। ये तसव्वुफ की अगर कहूँ ना तो सैकड़ों तारीफात हैं, यानी इसकी डेफिनेशन बेशुमार उलमा किराम ने, औलिया किराम ने इसकी अलग 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 तारीफ की है। मसलन एक तारीफ तसव्वुफ की है कि हाथ खाली, यानी पास एक पैसा भी ना हो, बिल्कुल कोई रुपया ना हो, कंगाल हो बिल्कुल, हाथ खाली, दिल की खुशी का नाम तसव्वुफ है। यानी कि इसके बावजूद दिल मुतमईन है, पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ। और हमारा हाल क्या है? रोजा रखा है ना, इफ्तार के वक्त कुछ भी ना हो तो खाली पानी हो, है ना, हमारा दिल खुश नहीं होगा। हमें पकोड़े चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मीठी मीठी डिशें चाहिए, है ना। तो ये क्या, खाली हाथ, दिल की खुशी का नाम तसव्वुफ, ये एक तारीफ है। और बाजों का देखिए सारी तारीफें एक जगह जमा हो जाती हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। तो वो हरीस और कुत्तों की तरह खाने पर टूट पड़ने वाला कोई सूफी थोड़ी होता है। हमारे यहाँ तो खाली नाम होता है सूफी फुला, सूफी फुला। दाढ़ी वाले को पंजाब में आमतौर पर सूफी बोलते हैं, भले छोटी सी दाढ़ी हो, रुमाल यूं आड़ा रखा हुआ है तो वो सूफी साहब है, टोपी पहनी हुई है। तो ये नहीं होते सूफी, इनको बेचारों को नहीं पता होता सूफी क्या होता है, तसव्वुफ की तारीफ क्या होती है। ये खुद भी अपने आप को सूफी बोल रहे होते हैं। खैर अब तो दुनिया में एक ट्रेंड चल गया है सूफीइज्म। तो सूफीइज्म जो है ना, अब जैसे दावत इस्लामी है, ये सूफीइज्म है, मजहबी लोग ये सूफी कहलाते हैं। और जो बिल्कुल ये ना लिबरल और ये दुनियादार टाइप के लोग होते हैं, ये और होते हैं, ये सूफीइज्म अलग। पीरी मुरीदी करने वाले, तरीकत वाले, पीरों फकीरों को मानने वाले, मज़ारात की हाजिरियां देने वाले, ये सूफी कहलाते हैं। तो ये भी एक अच्छी मतलब चीज है कि चलो नेकों से निस्बत तो, वरना हकीकत में सूफी बनना आसान नहीं है। तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस भी होती है, हाँ, इसमें शेव्ड भी होते हैं, दाढ़ी छोटी छोटी होती है, टिप टॉप, ये वो सब होता है, होती है सूफी तसव्वुफ कॉन्फ्रेंस, सूफी कॉन्फ्रेंस। तो ये जो किताबों में तसव्वुफ और सूफिया के जो अहवाल हमने देखे हैं, तो ये उनसे तो समझ नहीं आती कि मैचिंग कैसे हो। अच्छा, तसव्वुफ क्या है? सदर शरीअह बदरुत तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी लिखते, तसव्वुफ बालों के बढ़ाने और रंगे हुए कपड़े पहनने का नाम नहीं, बल्कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी पैरवी करने और ख्वाहिशात नफ्स को मिटाने का नाम है। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह लिखते हैं, हज़रत सय्यदी अबू अब्दुल्लाह मोहम्मद बिन खफीफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तसव्वुफ इसका नाम है कि दिल साफ किया जाए और शरीयत में नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी हो। फतह रज़विया शरीफ में हज़रत सैयदना सरी सकती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं, तसव्वुफ 3 वस्फों यानी 3 खूबियों का नाम है। एक है कि उसका नूरे मारिफत उसके नूरे वरा को ना बुझाए,
अल्लाह को ये पहचान ले और उसका तकवा, तकवे का आला दर्जा वरा है, तो वो वरा उसका कायम रहे, है ना। और दूसरे ये कि बातिन से किसी ऐसे इल्म में बात ना करे कि जाहिर कुरान या जाहिर सुन्नत के खिलाफ हो। तीसरे ये कि करामतें इससे उन चीजों की पर्दादरी पर ना लाए जो अल्लाह ताला ने हराम फरमाई। जैसे करामतें हो जाए तो ये फूल जाए और ऐसा ना हो कि वो गैर शरई हरकतें करनी शुरू कर दे। ये समझ में आया। और भी तसव्वुफ की काफी तारीफात हैं, तो अल्लाह करे कि हम सूफी बन जाए। अब तो सूफी की इस दौर में तो सूफी को तलाशना भी मुश्किल है, तलाशना भी नहीं आता। और लंबी लटें हों, औरतों की तरह लंबे लंबे बाल हों, और बस वो बड़ी बड़ी बातें करता हो, औरतों से हाथ चुमवाता हो, तावीज धागा हो, जिन जिन्नात पकड़ने में मास्टर हो, अमलियात जानता हो, बाबा जी हो, तो लोग समझते हैं ये सूफी है। तो ऐसा नहीं है। सूफी के लिए शरीयत की पाबंदी ये शर्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैरवी, सुन्नतों का आमिल होगा सूफी। तो अब तो मैंने अर्ज किया ना कि अब तो बिल्कुल दुनिया का नक्शा बदला हुआ है। तो सब वो ऐसा लगता है जैसे कि किताबों में है या मज़ारों में है, लेकिन खैर ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के नेक बंदे दुनिया में हैं जिनकी वजह से दुनिया का निज़ाम चल रहा है, तो वो लोग वाकई सूफी होते हैं। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अमीर सुन्नत की खिदमत में अर्ज ये है कि एक टर्म मशहूर है, इस्तिलाह सूफी कलाम, जो मखसूस तरीके से सूफियाना कलाम मखसूस तरीके से पढ़ा जाता है। मतलब कुछ उसमें मंच पर स्टेज पर बोलते होते हैं ये सूफियाना कलाम है, तो इसके हवाले से उनको पूछ दिया जाए पढ़ने जो बोलता है ना सूफियाना कलाम है, कि सूफियाना कलाम की डेफिनेशन क्या है, तो अगले भी झाकेगा बगले भी झाकेगा। अब बोलते हैं सूफियाना कलाम। हो सकता है बाद बुजुर्गों का सूफियाना कलाम होता भी होगा, लेकिन इस सूफियाना कलाम के माना तो समझ में नहीं आते। खुद जो बुजुर्ग कलाम लिख गए वो अपने कलाम को सूफियाना कलाम तो कभी पढ़ा नहीं है कहते हो। आला हजरत से मतलब ये नहीं इस दौर में बढ़कर सूफी कौन हुआ, इन्होंने भी अपने कलाम को सूफियाना कलाम कहीं लिखा हो ना, हमारे उलमा कहते हो, ऐसा कभी सुना नहीं है मैंने। इसको पढ़ा भी मखसूस तरीके से जाता है जो शरीयत के खिलाफ तरीके होते हैं। अब होता है, मतलब अब क्या किया जाए। मतलब वो है ना कि भेड़ चाल है, एक थोड़ा बड़ी सत्ता का कोई नातख्वान हो ना, वो अगर कहते ना कि अब मैं आपके सामने, मुझे कई मेहरबानों ने फरमाइश की है, तो मैं आपके सामने फुला का सूफियाना कलाम पेश करता हूँ। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, वो दादो तहसीन के कलमात बुलंद हुए, अब ये सूफियाना कलाम शुरू हुआ। जो भी इसने पढ़ना है वो पढ़ना शुरू किया। अब ये दूसरे नातख्वान छोटे छोटे, इनकी अपनी कोई तर्जें नहीं होती है आमतौर पे, तो ये बड़ों की नकलें कर रहे होते हैं, और कुछ नहीं मिलता तो गानों की नकलें कर रहे होते हैं। गानों की तर्जें भी हमारे यहाँ चल रही होती हैं। तो इस तरह मतलब ये कि यूं फिर वो भी सूफियाना कलाम बोलते होंगे, यूं मतलब ये कि गाड़ी चलती होगी। अल्लाह बेहतर जाने कि सूफियाना कलाम की असल तारीफ क्या है। अब जैसे मैंने तसव्वुफ का बताया, तो अब इसी तरह के मतलब अशआर हों जिसमें तसव्वुफ झलकता हो, तो वो सूफियाना कलाम हो तो अपनी जगह पर, अल्लाह बेहतर जाने। बड़ा तसव्वुफ बहुत बड़ी चीज है, ये पान की दुकानों पर नहीं मिला करता। एक तबका ऐसा भी है जो बिल्कुल तसव्वुफ का ही खिलाफ है। अब बहुत बड़े सूफी इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली हैं, और इन्होंने जो तरगीब पाई ये हजरत शेख अबू तालिबुल मक्की रहमतुल्लाह तआला अलैह से, इनकी किताब से क़ूतुल क़ुलूब, तो वो भी तसव्वुफ की बिल्कुल अव्वल दर्जे की किताब। तो इन्होंने भी इससे इह्या उल उलूम
लिखी, मिनहाजुल आबिदीन लिखी इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने, तो ये बहुत बड़े सूफी थे। तो ये तबका जो पाया जाता है ये इनका मुखालिफ है, इमाम गजाली का और जो भी सूफी बुजुर्ग हुए उनका मुखालिफ है। और मेरा तो ये जहन है कि जो भी औलिया किराम हुए सब के सब वो सूफिया किराम थे, तसव्वुफ का कोई भी मुखालिफ नहीं था। और तसव्वुफ जो है वो शरीयत के दायरे में ही रहेगा तो ही तसव्वुफ है, जो शरीयत की हद तोड़ेगा तो वो तसव्वुफ नहीं है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। सोशल मीडिया से सवालात हैं। जिया अली भाई पूछ रहे हैं, शौहर को नेक नमाजी किस तरह बनाया जाए? इत्ताअत गुजार अगर होगी, बीवी खुद भी नमाजें पढ़ती होगी पाबंदी के साथ, गिड़गिड़ा कर दुआएं करेगी, शौहर भी वो देख रहा होगा कि नमाजें पढ़ती है, अखलाक अच्छे होंगे, और शौहर ने पानी मांगा तो दूध हाजिर करती होगी, ये मुबालगा है, खिदमत करती होगी, तो इसका इम्प्रेशन उस पर रहेगा शौहर पर, और ये कहेगी कि आप भी नमाज पढ़िए, तो फिर उसकी समझ में जल्दी आ जाएगा। अगर वो लड़ाकी होगी, वो लड़ाए भिड़ाए धड़ाके करती रहेगी, घर में बर्तन के तोड़ फोड़ मचाती होगी, शोर मचाती होगी, तो फिर शोर कहाँ मानेगा इसकी। तो नमाजी अगर घर वालों को बनाना है तो ये सारे भाइयों के लिए भी बदरी फूल है कि वो इन बातों पर अमल करे, इंशाअल्लाह घर का हर फर्द नमाजी हो जाएगा। आपकी कोशिश जो है ना वो जल्दी बराबर होगी और समझ में आएगा आपका पैगाम, कि अमल करने वाले का पैगाम जल्दी समझ में आएगा। खुद ही बदअमली सबके सामने कर रहा होगा, बाप सिगरेट फूंक रहा होगा, बेटे को बोलेगा नहीं सिगरेट नहीं पियो, तो जी अब्बू नहीं पीऊंगा, फिर छुप के पिएगा अब्बू से। इसी मौजू के ताल्लुक से मिलती जुलती इसी मौजू के कॉल है हमारे पास, वो हम चला रहे हैं। सगे अत्तार साकिब अत्तारी, मेरे प्यारे प्यारे मुर्शिद करीम अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की बारगाह में अर्ज है कि अगर किसी का निकाह हुआ हो और वो अब चाहता है कि उसकी जो बच्चों की अम्मी है वो नेक बने, उसका जाहिर अच्छा बने, उसका बातिन अच्छा बने और वो अच्छी बने, उसका किरदार सुथरा हो जाए, इसके लिए शौहर को क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए जो अभी मैंने बताया आपके बीवी को जो करना है। शौहर के अखलाक दुरुस्त होंगे और सारे मामला दुरुस्त होंगे और ना नफका हुकूक जो भी है उसमें वो पूरा होगा तो बीवी इससे मुतासिर भी होगी, वरना आम तौर पे बीवियां शौहर से मुतासिर नहीं होती, भले कितना ही ये लोगों में इसकी मकबूलियत हो नेकी के हवाले से, लेकिन औरत उसका अंदर बाहर सब देख रही होती है। अंदरूनी मामला जो होते हैं घर की चार दीवारी में, उसके अखलाक, किरदार, गुफ्तार, रफ्तार, वो सब देख रही होती, तो वो सेट नहीं होती, औरत सेट नहीं होती। अपने किरदार से सेट करे उसको, फिर ये मानेगी। और ये जो शीर लाने के मुतरादिफ है कि औरत भी कायल हो जाए। यहाँ एक चुटकुला याद आ गया, मुझे किताब में पढ़ा था, हंसना मत। एक औरत का जो शौहर था वैसे बेचारा नेक आदमी था, लेकिन वो औरत उसकी तरकीब में आती नहीं थी, मगजमारी करती रहती थी उसके साथ। तो एक दिन वो छत पे खड़ी थी, शौहर ने मौका गनीमत जाना और वो दूर से उसने उड़ना शुरू किया, था पहुंचा हुआ तो उड़ना शुरू किया। तो उड़ते उड़ते वो छत पर से गुजरा अपनी औरत को दिखाने के लिए, और कुछ चक्कर भी लगाया था कि औरत देख ले, तो वक्त औरत ने देखा, अब इसने कुछ और चक्कर लगाए उड़ते उड़ते, मगर इतनी दूर से कि वो पहचान न सके। खैर फिर वो उतर आया और दरवाजे के जरिए घर में दाखिल हुआ। औरत तैयार बैठी थी, उसने कहा अल्लाह वाला तो आज मैंने देखा है, तुम खाली बातें करते हो। तो जब शौहर ने देखा कि रंग जम गया है तो उसने कहा कि तुमको पता है वो कौन था? माँ बदौलत मैं खुद था वो।
अब बीवी ने बोला अच्छा अच्छा, जब भी मैं सोच रही थी आप थे, अच्छा अच्छा, जब भी टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे। ये तस्लीम नहीं करती, मतलब है ना, तस्लीम कर लिया दूसरे किसी आदमी को, शोहर की बात आई तो अब ये उसका को टेढ़ा नजर आया। ये है मसाइल कि बाज़ औक़ात औरत तस्लीम कर, औरत बीवी अगर किसी की मुतासिर हो ना तो बात ही क्या है, और वो दुनिया से चले गए। सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज की किसी कहते हैं, इनकी किसी मुतासिर थी, तो यूं मतलब यानी कि जो हमारे बुजुर्गान दीन गुजरे, इनकी भी बादों की बीवियां सेट नहीं थी। वो शेख अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह तआला अलैह, ये बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, वलीउल्लाह थे। तो एक बार कोई दूर से सफर करके इनकी आबादी में आया, बस्ती में आया, और ढूंढता हुआ पहुंचा कि मैं इनकी ज़ियारत करने आया हूँ। दूर से घर का दरवाजा बजाया तो जनानी आवाज आई औरत की, कौन है क्या है? तो बोला मैं बड़ी दूर से सफर करके शेख अबुल हसन खिरकानी साहब से मिलने आया हूँ। क्या ये इन्हीं का घर है? हाँ इन्हीं का घर है, लेकिन आपने इतना बड़ा धक्का खाया, आपको हो क्या गया है? और तो मतलब गलत आदमी है, आपको रॉन्ग नंबर लग गया है, अच्छा आदमी नहीं है। वो तो झटका खा गया कि घर की औरत बीवी कह रही है कि वो अच्छा आदमी नहीं है, और मैंने तो इनकी विलायत की शोहरत सुनी है। तो फिर ये मायूस होकर थोड़ा हटे, फिर भी सोचा कि नहीं, मुझे इतनी दूर से सफर किया, देखना तो चाहिए इनको। फिर लोगों से पूछा कि कहीं देखा इनको? किसी ने कहा ये इस तरफ गए थे और ये मतलब आप देखें, तो वो इस तरफ, ये वीराने की तरफ गए, जंगल की तरफ। तो दूर से देखा कि वो कोई आ रहा है सवारी पर, कोई लकड़ियां लाद के। जब करीब आया तो चौंके कि एक शख्स आ रहा है और उसके पीछे शेर है, और शेर पर लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है। ये लकड़ियां काटने गए थे, तो लकड़ियों का गट्ठा लदा हुआ है। तो वो आदमी तो घबराया, तो उन्होंने आवाज दी, घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैं अपनी बदमिजाज बद अखलाक बीवी का बोझ ना उठाता तो क्या शेर मेरा बोझ उठाता? इन्हें करामत बताई ना कि इनके दिल की बात इनको बता दी। फिर शेर को लकड़ियां बांध के चलाना ये करामत है। शेर तो इस तरह का काम नहीं करता जो खोता करता है। तो यूं मतलब है ना कि बीवी अगर बदअखलाक भी है और निभाए जा, लड़ाई नहीं करो, कभी न कभी राम हो जाएगी इंशाअल्लाह। अमीर सुनो खिदमत में अर्ज है कि अगर कोई इससे ये जहन बनाए कि किसी के बच्चों की अम्मी भले लाख अपने बच्चों के अब्बू के बारे में कोई बात बताए, कोई शिकायत करे कि उसकी इस्लाह की कोई सूरत निकले, तो वो कहे कि बीवी है चूंकि ये मुतासिर नहीं होती इसलिए शिकायतें लगा रही है, मतलब उस पर यकीन ना करे। हाँ ये नहीं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब औरतें ऐसी होती हैं, ये भी नहीं। और अगर वो कोई सी बात सुनते भी है तो ये औरत मुतासिर होती नहीं, इसलिए सी बात नहीं, ऐसा नहीं। खौफ खुदा वाली औरतें भी, इनकी भी एक तादाद मिलेगी घरों में जो अपने शोहर की भलाई की बात करेगी। मैं जनरल बात की है कि ये होगी तो कम होगी, मतलब होता है आमतौर पे। तो हदीस में भी है ना कि ये है औरतों तुम बहुत नाशुक्री करती हो, नहीं शोहर कितना भी एहसान करे मगर वो नाशुक्री करती है। ये हदीसों में ये मज़ामिन मौजूद है। लेकिन जाहिर है कि हर औरत के लिए तो इसका नहीं मानेंगे, जैसे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का ये मायना हो। जाहिर है कि मतलब ये देखिए इस्तिस्ना तो मुस्तस्नियात तो होती हैं कि कुछ ना कुछ औरतें ऐसी होती हैं कि जो वाकई यानी कि अच्छी और नेक बीवियां होती हैं, शोहर की मतलब राजदार भी होती होंगी और बड़ा ख्याल रखती होंगी, दिल से ख्याल रखती होंगी सवाब के लिए, अल्लाह और रसूल का हुक्म समझकर इनकी इताअत और फरमाबरदारी करती होंगी। लेकिन मुत्तासिर ना होने वालों की तादाद शायद ज्यादा है। जी हाँ, अब इसमें मर्दों का भी कसूर कम नहीं होता होगा जी। अब मर्द भी है, अब देखो ना औरत बेचारी है, अब रोजा है मिसाल के तौर पे, थकी हारी है, सोई हुई है, वो अब आपका चार्जर आप कहीं रख के भूल गए, मिसाल के तौर पर घर में आए, चार्जर कहाँ है, इधर रख दिया, तो
अब वो आँख खुलेगी उसकी, जरा चार्जर निकाल के दे। अब वो बेचारी उठेगी, चार्जर ढूंढेगी, बोलेगी वो आपकी दराज में से निकला, आप शायद रखकर भूल गए थे, ठीक है जरा यहाँ रख दो। अब अगर ऐसा अंदाज होगा शोर का, आप सच बताएं कि वो औरत कब मुतासिर होगी यार। बल्कि मजा तो इसमें कि मतलब अपना काम अपने हाथ से बंदा घर में करता रहे, औरत को तकलीफ ना दे। उठना रखाना छोटा छोटा काम है, दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान उठाना, खाना लगाना, खाना उठाना, कभी प्याला प्लेट धो भी लिया अपने हाथ से, यार क्या कयामत आ जाएगी। इससे औरत आपकी मुतासिर होगी। ये मुझे ऑर्डर नहीं करते, हालांकि ये ऑर्डर करें तो कोई ऐब नहीं है, लेकिन नहीं करते। रुमाल, टोपी, ये छोटी छोटी चीजें भी बेचारे खुद धो लेते हैं। ये मदीना तो ऐसा हम लोग थोड़ी करते हैं। इधर देख कचरा पड़ा है, चल झाड़ू उठा, चल चल जल्दी पोछा लगा। ये नहीं करना चाहिए। इससे ज़रा आखिर ये भी इंसान, इसका दिल दुखेगा तो फिर मसाइल खड़े होंगे। दिल आज़ार अंदाज भी नहीं होना चाहिए, मोहब्बत भरा अंदाज होना चाहिए। हर मुसलमान की जब दिलजोई करते हैं, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं, तो इनका क्या हक नहीं बनता इनके साथ हम हुस्न अखलाक से पेश आए, इनको पाँव की जूती ना समझे। ये मुहावरा है, बाद लोग औरत को अपनी पाँव की जूती समझते हैं। अल्लाह करीम हमको अक्ल सलीम अता फरमाए। औरत को भी चाहिए कि अपने शौहर की खिदमत करे, और शौहर को चाहिए कि वो बेवजह उसको बार बार आर्डर ना करे, उसको सोने दे। तबीयत नरम गर्म हो तो बिल्कुल उसको छेड़े नहीं, अपने हाथ से खाना पीना हो मुमकिन हो तो कर ही ले। करते हैं जो छड़े होते हैं, जो पैसे कमाने जाते हैं, आपको पता है होटल में बेरे बने हुए होते हैं, यहाँ आकर वो छुटेट बुटेट बन के घूम रहे होते हैं। अमेरिका में काम कर रहा हूँ, यूके में काम कर रहा हूँ, अब वाकई बोलता हूँ, ये बेरे होते हैं होटल के, टेबल साफ कर रहे होते हैं और घर में प्लेट नहीं साफ करेंगे। ये ड्राइविंग कर रहे होते हैं उल्टे सीधे लिबास पहनकर, पेट्रोल पंप पे खड़े होते हैं। जी हाँ, हमामों में काम कर रहे होते हैं, इस्तिंजा खानों में काम कर रहे होते हैं। मैं सही बोलता हूँ आपको। और यहाँ आकर बिल्कुल जेंटलमैन बने होते हैं। और जब ये आपके सामने, आप होटल में ही जाओगे ना, सबसे बड़ा नोट निकालेंगे होटल वाले के, बिल्कुल नया, आप पर इंप्रेशन डालेंगे। ऐसा हम लोग जानते होते हैं, बाजू का देखा वाला होता है, दुनिया देखी वाली है। खाली खाली मतलब ये नहीं कि अपनी शोबाजी कर रहे होते हैं। तो जो अब बाहर जाकर ये करते ही है ना यार, तो घर में कर लो ना यार। आप कौन से छोटे बाप के हो जाओगे? तो घर में भी अपने हाथ से काम करना चाहिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपना मुबारक नालेन अपने हाथ से सी लेते, बकरी का दूध खुद दोह लेते, और दीगर घर के कामकाज अपने मुबारक हाथों से करना, इसकी हदीसें साबित है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम भी अच्छे आशिक रसूल हैं यार, कि एक प्याला भी उठाकर इधर से उधर रखने के लिए तैयार नहीं है, बीवी आकर उठाएगी। अल्लाह करे दिल में उतर जाए। हमारे इस्लामी भाई तो बाबा फ्रिज खोलकर अपना दूध निकाल कर, दूध की पतीली निकाल कर चूल्हे पर गरम तक नहीं करते बेचारे। बकरी जगह निकालेंगे, ये और बकरी से निकालना नहीं है तो बकरी लात मारेगी, सींग मारेगी। ये भी सोच समझ क्या ने वाकई से जोर से दबा देंगे तो आखिर वो भी जानदार है ना। अभी फ्रिज तो नहीं है ना यार ये। अब ये तो खैर वो सीखना चाहिए, लेकिन जैसा आपने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा बयान की, नाले पाक का खुद सी लेना, तो यहाँ तो हमारा ये सांप आता है ना घर में, तो जूते फेंकता है एक तरफ, चप्पल फेंकता है एक तरफ, मोजे फेंकता है एक तरफ। और जब सुबह उठेगा ना तो सांप को मोजे और जूते और चप्पल एक जगह पर तरतीब के साथ चाहिए। अगर जैसे आपने चार्जर का कहा ना, ये जूते ना मिले, चप्पल ना मिले, मोजे ना मिले, रुमाल ना मिले, और अगर कोई जैसे मजहबी आदमी तो टोपी पहनने वाला तो टोपी ना मिले। इसी तरह गाड़ी की चाबियां कहाँ फेंकेंगे, तो मोटरसाइकिल की चाबियां कहाँ फेंकेंगे। तो ये हमारे कई होते हैं लोग जिनके अंदाज इसी तरह के होते हैं। तरतीब नहीं है ज़िंदगी में इनकी, और सब काम उस औरत को करने हैं जो कि बच्चों का करते करते इनका भी करे। यानी बच्चा शायद अपना कम वो उधर उधर चीज़ें फेंकता हो, बाकी ये आने के बाद बाज़ लोग पे होते हैं, बाज़ों के पास डायरियाँ होती हैं, कलम होते हैं,
تو یہ چیزیں اتنی منتشر کر کے رکھتے ہیں یہ لوگ اپنی چیزیں. آپ نے جو ارشاد فرمایا نا کہ یہ اپنی چیزوں کو کس طرح لے کر چلے, حتیٰ کہ بہت خوبصورت بات آپ نے فرمائی, اپنے رومال, اپنے موزے, اپنی اس طرح کی چیزیں اگر بندہ خود دھو لینا, اور دھو لے تو کیا بات ہے, یہ ہو جائے نا تو سمجھے کہ واقعی مدینہ مدینہ ہو جائے, متاثر ہو جائے یہ عورت, ورنہ یہ ہوتے کم ہیں, ورنہ یہ اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نعمان اتاری ہے, میں موبائل مارکیٹ سے بات کر رہا ہوں. حضرت صاحب مجھے ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ جیسے موبائل ہے مجھے آیا ہوا ہے 20,000 روپے کا, اور میں کسٹمر کو بتاتا ہوں کہ یہ 23,000 روپے کا ہے. کسٹمر بولتا ہے کہ کچھ کم کر لو, تو میں اس کو بولتا ہوں کہ یار میرا وارہ نہیں ہے, تو یہ چیز صحیح ہے یا غلط, یہ آپ سے پوچھنا تھا. میرا وارہ نہیں ہے. اب آیا اس سے مراد اگر یہ ہے کہ یہ تو میری خرید بھی نہیں ہے, تب تو خیر جھوٹ ہوا, دھوکہ ہوا, جھوٹ ہوا, جو بھی ہوا گناہ ہوا. لیکن میرا وارہ نہیں, اس سے مثلا یہ اگر مراد لیتا ہے کہ یار مجھے یہ نفع میرے لیے تھوڑا ہے, وہ واضح نہیں کہہ رہا میرا وارہ نہیں ہے, میرے وارے میں نہیں آتا. تو یہ مبہم سا ایک محاورہ ہے بیپاریوں میں. یہی دونوں معنی کا احتمال ہوتا ہے. وارہ نہیں کہ اتنا نفع لے کے ہم اپنا گزارا کر نہیں سکیں گے, جیسے اتنے کا پڑا ہے, لیا اتنے کا ہے, پڑا اتنے یہ نہیں بولتے نا کہ 20 کا پڑا ہے, 23 میں میرا وارہ نہیں ہے, تو بولے گا یار 21 لے لو, سمجھے جی. یہ مطلب اس لیے وہ اس نے چھپایا, اور اس نے یہ جملہ بولے میرا وارہ نہیں ہے. یہی ہے, اگر اس کی نیت میں یہ موجود ہے تو وارہ نہیں ہے, یعنی اتنا مجھے چلے گا نہیں مجھے, تو صورت تو نکل آئے گی کہ یہ جھوٹ نہیں بنے گا, لیکن ہے بہرحال محتمل جملہ ہے, دونوں طرح کے معنی رکھتا ہے. اور سوال کوئی رہ گیا ہو تو؟ ہاں یار, یہ چونٹیاں جھاڑو نکالنا ہے, اور چونٹیاں بہت ساری ہیں. اب جھاڑو کی رگڑ سے تو وہ مر جائیں گی, مگر اب یہاں نفع ہے, جھاڑو نہیں نکالتے, صفائی ڈسٹرب ہو رہی ہے, حمام میں چونٹیاں رینگ رہی ہیں, نہانا ہے, اب نہاتے ہیں تو یہ ڈوب مریں گی. بیسن میں لائن لگی ہوئی چونٹیوں کی, ہاتھ دھوئیں گے تو چونٹیاں اس میں بھی ڈوبیں گی. اگر ان کو بگاتے ہیں تو یہ جائے گی اس میں نالی کے اندر, پھر ہاتھ دھوئیں گے تو پانی تو وہیں جانا ہے نالی میں, تو سب کو ڈبو دے گا شاید. اس صورت میں کیا اس نفع کی خاطر ان کو مرنے دیا جائے چونٹیوں کو؟ یہ اسی لیے میں کنفیوز ہوں کہ کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ان کو مارنا مکروہ تحریمی ہے بلا وجہ, گناہ. یہ اللہ کا ذکر کرنے والی مخلوق ہے, مگر یہ بلا وجہ نہیں ہے, وجہ تو ہے. کیونکہ ابھی کیسے اور حل کیا کرے, کہاں نہائے جا کر, کہاں ہاتھ دھوئے؟ وہ یہ ہے کہ بیسن سے وہ پھونک کے مار مار کے, نہیں بیسن سے اڑ کے وہ باہر گریں گی نا, تو یوں مطلب وہ ایک تو ہے نا مرنا, ایک ہے بچھڑنا, دونوں میں فرق تو ہے نا. تو یہ ہلکا ہے نا بچھڑنا مرنے کے مقابلے میں. شاید یہ ڈھونڈ ہی لیں گے اپنے خاندان کو, یہ قریب قریب تو ہوتے ہیں ان کے بل وغیرہ. تو کم سے کم یہ مریں, کم سے کم تکلیف میں پڑیں, اس کا خیال رکھیں. ورنہ ذرا بیسن پر ہاتھ دھونے کا منع کر دیتے ہیں یا نہانے کا منع کرتے ہیں تو چوٹیاں تو بہت ہوتی ہیں. یہ تو بہت, میں نا اس کو حرج کی صورت کہیں گے نا, یہ حرج ہو جائے گا, لوگ تکلیف میں آ جائیں گے اگر اس کو ہم ناجائز کہہ دیں گے تو. اسی طرح جھاڑو نکالنے کو بھی ناجائز کہہ دیں گے تو ظاہر ہے کہ حرج کی صورت ہوگی. اس لیے میں نے ایک طریقہ بتایا تھا آپ کو کہ چادر سے ان کو اوپر سے, چادر سے ہوا زور زور سے مطلب دیں اس کو, اور رگڑ نہ کھائے یہ چادر, یہ اڑ جائیں گی چٹیاں ادھر ادھر, پھر آپ جھاڑو نکال لیں, کم از کم مریں گی تو نہیں. اور یہ ہوا سے اڑانے سے امید ہے زخمی بھی نہیں ہوں گی, بہت ہلکی پھلکی ہوتی ہے, اونچے پلازا سے بھی پھینک دو تو زخمی نہیں ہوگی, بظاہر ایسا لگتا ہے زخمی نہیں ہوگی. اب وہ خوف کے مارے یا دہشت ان کو ہوتی ہو, یوں اڑتے اڑتے آتے راستے میں بیچاری ہارٹ فیل ہو جائے تو پتہ نہیں ہے, چونٹی پلازا سے گرے تو. دل تو ان کا بھی ہوتا ہوگا نا, ہاضمے کا نظام بھی ان کا ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی قدرت پھر کس کو کہتے ہیں. ہم تھوڑی مطلب یہ سارا سمجھ سکتے ہیں, سائنسدان بھی ان چیزوں کی تحقیق کرتے ہیں, تو جو
यानी कि खुश नसीब होते हैं, बाद औक़ात ईमान ले आते हैं यार कि अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा। मुझे एक डॉक्टर ने बहुत पहले बताया था कि ये हाथ है ना, हाथ, ये हाथ को देखकर आदमी का ईमान ताज़ा हो जाए, इसके अंदर का निज़ाम इतना अल्लाह ताला ने इसका ऐसा निज़ाम बनाया है, इसकी वो रगें और नसें और बोटियां और गोश्त और जो मतलब इसकी तरतीब है अल्लाह ताला ने जो बनाई है, ये ईमान ताज़ा कर दे आदमी का, खाली एक हाथ का तो पूरे बदन का तो ये अल्लाह की। अब जैसे कि हमारे अंदर वेन्स हैं, ये वेन्स जो अंदर हैं, ये सबको अगर एक साथ कर दिया जाए तो पूरी दुनिया के कितने चक्कर लगा ले, लाखों मील, लाखों शायद किलोमीटर की बन जाए। ऐसा मैं भूल गया, उसके है कोई हिसाब है, कोई आ जाएगा पैगाम शायद, कि इतनी लंबी ये वेन बन जाएगी ये एक बदन में इंसान के। तो जो खुदा इस तरह का निज़ाम बनाता है ना, वो कैसा अजीम खुदा है। हमारा खुदा कितना अजीम है, वही खुदा है। बाकी जिनको भी लोग खुदा बोलते हैं वो हकीकत में खुदा नहीं है, वो इनकी गलत फहमियाँ हैं, और वो इस गलत फहमी को दूर करके सच्ची तौबा करके ईमान ले आएंगे तो मुसलमान हो जाएंगे, वरना तो वो हमेशा जहन्नम में रहेंगे किसी और को अगर खुदा मानते रहेंगे तो। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारा मजहब कैसा है इस्लाम के, जिसमें चींटी का भी कितना लिहाज रखा जाता है कि बिला वजह शरई इसको ही मारना जायज़ नहीं है। माशाल्लाह। ये रिसर्च ये बताती है बाबा कि दैट्स इनफ टू गो अराउंड द वर्ल्ड ट्वाइस, मतलब 2 बार दुनिया घूम सकती है। 2 बार दुनिया घूम जाए, इतनी वेन्स एक आदमी के बदन में होती है। तकरीबन 1 लाख माइल्स, 1 लाख मील होती है तकरीबन, और 2 तो मैंने दुनिया 50 लाख 100,000 माइल्स, 100,000 माइल्स यानी तकरीबन 1 लाख 100,000 माइल्स यानी 150,000 किलोमीटर हुआ। जी जी जी। तो सोशल मीडिया से सवालात हैं। वक्कास अंजुम भाई पूछ रहे हैं अल्ट्रासाउंड करवाना कैसा? ना जायज भी है ना जायज भी है। इलाज के लिए अगर करवाते हैं और बेपर्दगी भी हो रही है तब भी जायज है, और जहाँ बेपर्दगी नहीं हो रही किसी तरह से भी तो वहाँ अगर खाली एहतियातन भी बंदा करवा लेता है अल्ट्रासाउंड तो जायज है। अब ये आजकल जो ये देखने के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं ना कि बेटी है या बेटा है, ये नाजायज है, ख्याल रखिएगा, बिल्कुल नाजायज है। इसलिए कि ये औरत की वो जगह पर्दे वाली वो बेपर्दगी होती है इसमें, और इसकी इलाज के लिए जरूरत नहीं है। हाँ, इलाज के लिए कोई जरूरत हो ना तो वो एक अलग सूरत है, ये इलाज की सूरत नहीं है। अच्छे भले लोग करवाते हैं कि लड़की है लड़का है, और फिर नाक भी कटती है बाजू बात। ये मैं आपको सही बोलता हूँ कि अल्ट्रासाउंड में निकली लड़की, एक बार ये केस अपने रिसाले में लिखा है कि एक केस हुआ था कि निकली लड़की और बेवकूफ शोहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो लड़की जनेगी जैसे इसके हाथ में ना हो बेचारी के। एक तो हामिला इतनी तकलीफ में होती है, इतनी आजमाइश में होती है, और उस जालिम ने बेचारी को इस वजह से तलाक दे दी। अब ये मजलूमा पर क्या गुजरा होगा। और खुदा की शान देखें कि जब उसको विलादत हुई तो बेटा आया। अब उस शोहर नालायक का कितनी नाक कटी होगी और लोगों ने इसको कितना कोसा होगा कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर तूने बेचारी को तलाक दे दी। अगर कंफर्म भी कोई बेटी जनती है तब भी तलाक की क्या जरूरत है? अल्लाह ने दी है ना बेटी, बल्कि बेटी तो अल्लाह की नेमत है, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह ताला अक्ल सलीम अता फरमाए लोगों को कि बेटी जन्ना बेटा जन्ना औरत के इख्तियार में नहीं है। बेचारी का कोई कसूर नहीं है इसमें। जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, ये रिसाला पढ़ेंगे ना तो अल्लाह करेगा ईमान ताज़ा हो जाएगा। और ये अभी जो मैंने हिकायत बयान की ना, ये भी इसमें गालिबन ये बतौर सच्ची हिकायत अखबार की खबर है शायद। ये 32 पेज है इसकी। जिंदा बेटी कुएं में फेंक दी, इसमें बेटी के बेमिसाल फजाइल भी है। सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। साहबजादा हुजूर की खिदमत में अर्ज़ है कि इस्लाम ने तवज्जो दिलाई कि अभी जब आप ऊपर
تشریف لائے تو شہزادہ اسید رضا بھی آپ کے ساتھ تھے، تو انہوں نے غالباً الٹا پاؤں شاید مسجد میں داخل کر لیا، تو آپ ان کو لے کر پیچھے گئے اور پھر ان کو سیدھا قدم داخل کرایا. تو یہ انداز جو اختیار کیا گیا اس کے بارے میں اگر کچھ ایسا کچھ ہوا تو نہیں؟ ابھی جب غلط فہمی ہوئی ہوگی، مجھے یاد نہیں. نہیں صاحبزادہ حضور حاجی رضا جب آئے رضا نے ایسا کیا تو شہزادہ اسید ساتھ تھے چھوٹے جو ہیں، تو انہوں نے الٹا قدم جو داخل کیا تو ان کو لے کر وہ پیچھے گئے اور دوبارہ ان سے سیدھا قدم داخل کروایا. تو جیسے ابھی تربیت کی بات چل رہی تھی تو کسی نے توجہ دلائی کہ یہ بھی ماشاءاللہ ایک اچھا انداز کہ بچپن سے ہی اگر بچوں کو اس طرح تربیت دی جائے تو وہ سیکھتے ہیں. ماشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیت بازی نعت خوانوں سے کچھ نہیں ترکیب بن جائے. اتنی دیر تک ہو دیدے مصحف عارض نصیب، حفظ کر لوں ناظرہ پڑھ پڑھ کے قرآن جمال. آخر میں آیا لام، لم یأتی نذیرک فی نذر. تو لام سے اب آپ کو شعر بنانا 12 سیکنڈ کے اندر. اب بڑے بڑے نعت خوان ہیں آپ یار، صفحے اول کے ہمارے یہاں مدنی چینل کے. جی لام سے محمود بھائی سنائیے. 12 سیکنڈ ہو گئے ہوں گے. لم یأتی نذیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا. تو یہ آپ ہر لات خان کو الگ الگ شعر دیں گے؟ اب یار اصل مجھے ایک دم سے یہ سب ترکیب بنی نا، پہلے سے کوئی اشعار کا شعر بنا لینا. آپ کا تو ہمیں یاد ہے نا شعر کتنے یاد ہیں. تو میری تو کیا شان ہے، میری شان بے شان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اچھا میرے سنت ابھی پورا نہیں ہوا یہ. ہاں وہ پورا پڑھا نہیں انہوں نے. مثلے تو نہ شد پیدا جانا. جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا. جی یہ تو محمود بھائی نے سنا دیا. اب حاجی امین کو آپ کو شعر دیں. اصل مسئلہ یہ کہ مجھے اس کا تھوڑا سا یوں اندازہ ہو رہا، جیسے انہوں نے لم یأتی نذیرک فی نظر، اب انہوں نے طرز میں پڑھا تو ان کو پتہ ہے کہ یہ طرز میں پڑھتے پڑھتے ان کو 30-40 سیکنڈ لگیں گے اور اس کا آخری حرف کیا ہے، تو یہ آخری حرف کو پہلے سے دیکھ لیں گے. اس کے بعد تو میرے کو یہی شعر سنانا ہے، تو یہ ختم ہونے کے بعد ہے نا نیا شعر کہیں اور سے آنا چاہیے. چلے میں جی جی بالکل. آپ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. نون غنہ سے پڑھیں. نون غنہ کا نون آئے گا تو ویسے ہی میں نے کہہ دیا نون سے پڑھیں. ہاں یہ ان کا کنفیوز تھی بھی مائک کھڑی گری ہے غنہ سے کیوں شعر بننا. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے چاندنی ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. جی اشفاق بھائی کی باری آئی ہے. یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. واو. جی اشفاق بھائی. مشہور یار یہ تو شعر ہے. واو سے پڑھنا ہے. وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا.
तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जी शहजादा हुजूर, अब महमूद भाई को कोई शेर दें। एक रोज होगा जाना सरकार की गली में, होगा कभी ठिकाना सरकार की गली में। मैं नून जी महमूद भाई, आपको 12 सेकेंड के अंदर अंदर शेर देना है। काउंटडाउन लगा दिया करें। मेरा ख्याल है 7-8 तो हो गए सेकेंड। नून वक्त तो बज़ाहिर खत्म हो गया है। मैं पढ़ लूं? या गुस्सा। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। यक ज़माना सोहबत बाओलिया, बेहतर सद साला ताअत बेरिया। अलिफ। ये फारसी में सुनाएंगे? नहीं अमीन भाई इजाजत है। अच्छा इजाजत है आपको, फारसी में सुना, सुनाएंगे। इंग्लिश में सुना, अरबी में सुना। अलिफ। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न माने ये क़यामत में अगर मान गया। एक तरफ वादाए दी, एक तरफ हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दरूद। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दुरूद। दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने में तसल्ली को तेरा हाथ धरा हो। वाओ जी। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुँचेंगे, इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करमी। मी रस्मुल ख़त मीम से पढ़ा जाएगा। मीम से पढ़े। मोमिन हूँ मोमिनों पे रऊफ़ और रहीम हो, साइल हूँ साइलों को खुशी ला नहर की। माशाअल्लाह। या रब मोहम्मद मेरी तकदीर जगा दे, सहराए मदीना मुझे आंखों से दिखा दे। यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो, ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। या रब फिरोज पर ये हमारा नसीब हो, सुए मदीना फिर हमें जाना नसीब हो। वाओ। महमूद भाई पूछे ही नहीं, वाओ पर पढ़ना है। वाह क्या जूदो करम है शह बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। एक में क्या मेरे इस्यां की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी इशारा तेरा। अलिफ। आप ये देखिए, जिस पर आप खत्म कर रहे हैं ना, हैं हमारे साहबजादा हुजूर है ना, वहीं से शुरू कर रहे हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। निसार तेरी चहल पहल पर हजार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इब्लिस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। नारे दोज़ख को चमन कर दे बहारे आरिज, जुल्मते हश्र को दिन कर दे नहारे आरिज। ज़ौफ माना मगर जालिम दिल, उनके रास्ते में तू थका न करे। ये दिल ये जिगर है, ये आंखें ये सर है, जहाँ चाहो रखो कदम खौफ आला। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन व सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन उरबिन व मिन अजमी। मीम। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग। वहाँ प्यारा काबा, यहाँ सब्ज़ गुंबद, व मक्का भी मीठा तो प्यारा मदीना। वो तो शेर दे रहे हैं। मांग लो चश्मे तर मांग लो, दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो, सब्ज़ गुंबद के साए में घर मांग लो। मांगने का मजा आज की रात है। या रसूलुल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीबल्लाह इस्मा क़ौलना, इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन, ख़ुज़ यदी सहिल लना इश्कालना।
अलिफ है। अल्लाह अल्लाह के नबी से फरियाद है नफ्स की बदी से। ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, कहें हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजम मुनीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए। माशाअल्लाह शहजादा हुजूर ने बड़ा प्यारा शेर पढ़ा और ये बहुत खूबसूरत कलाम है। आइए ये पूरा कलाम सुनते हैं। ये कहती थी घर घर ले जाकर हलीमा, ये कहती थी घर घर ले जाकर हलीमा, मेरे घर में खैरुल बरा आ गए हैं, बड़े औज पर मेरा मुक़द्दर, बड़े औज पर मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं, उठी चार सू रहमतों की घटाएं, मुअत्तर मुअत्तर है सारी फज़ाएं, सारी फज़ाएं, खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, वो शाफ़िरा से जज़ा गए हैं, खुशी में ये जिब्रील नग़्मे सुनाए, वो शाफ़िरा से जज़ा गए हैं। ये सुल्फत से कह दो कि डेरे उठा ले हैं हर तरफ अब उजाले उजाले, ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, हैं हर तरफ अब उजाले 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 उजाले, कहा जिनको हक ने सिराजो जो नीरा, कहा जिनको हक ने सिराजो जो नीरा, मेरे घर वो नूरे खुदा गए हैं, बड़े औज पर है मेरा मुक़द्दर, मेरे घर हबीबे खुदा गए हैं। नकीरें जब जब जब
तुर में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुझको सुना करे नकीरन जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे ज़ियारत का मुझको सुना करे मुझको सुना करे उठो पहरे आज़ीम नूर हसन अब उठो पहरे आज़ीम नूर हसन अब लहद में रसूल खुदा आ गए उठो पहरे ताज़ीम नूरुल हसन अब लहद में रसूल खुदा आ गए ये कहती कि घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर में खैरुल वरा आ गए आकर लहद में करो शेर हाजी अमीन नकीरेन नकीरेन जब मेरी तुरबत में आकर नकीरन जब मेरी तुरबत में आकर कहेंगे जियारत का मुजदा सुना कहेंगे जियारत का मुजदा सुनाकर उठो बहरे ताजीम नूरुल हसन अब लहद में हबीब खुदा आ गए हैं। नहीं किसी हदीस से ये मुस्तफाद होता है, ये मैं सोच रहा हूँ कि क्या मुनकर नकीर तो क्योंकि बहुत वो करख्त आवाज में और वो सवाल जवाब करेंगे, क्या वो ताजीम के लिए उठवाएंगे किसी को कि ताजीम करो उठकर महबूब खुदा तशरीफ ले आए। यानी मैं ये सोच रहा हूँ हाँ मुबशिर और बशीर होंगे, लेकिन अब ये अल्फाज जो है अल्लाह बेहतर जाने ताजीम के लिए कहेंगे उठो। ये नूरुल हसन लिखिए। अब वो बहरहाल अपने बुजुर्गों का कलाम तो नहीं है ये, उलमा का, पता नहीं कौन है ये साहब। इसी तरह वो जैसे कि अभी वो ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले कि है हर तरफ उजाले उजाले, जब उजाला आ गया तो अंधेरा तो खुद खत्म हो चुका है, अब किसको कह रहे डेरे उठा ले। जुल्मत में अंधेरा, ये जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले कि है हर तरफ उजाले उजाले, यानी कि ये उजाला जो है ना ये अंधेरे का तोड़ है। उजाला आया अंधेरा रहा नहीं, अंधेरा होगा तो उजाला कहलाएगा नहीं। तो चलो ये तो ऐसा मसला नहीं है इतना बड़ा, लेकिन इसमें थोड़ा मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे कंफर्म पता नहीं है कि कोई सी रिवायत हो, किसी रिवायत से ऐसा कोई निकलता हो माना कि नकीरन किसी से ये भी फरमाएंगे कि उठो, अल्लाह बेहतर जाने। वल्लाह ये जो है ये कहती थी घर घर में जाकर हलीमा मेरे घर हबीब खुदा आ गए। ये तो खुशी का बीबी हलीमा ने बताया तो होगा, ये तो समझ में आता है कि मेरे घर में एक है, हदीस भी है कि ऐसा बच्चा आया है, इसकी ये बरकतें हैं, ये बरकतें हैं, मेरी बकरियों के थन दूध से भर गए वगैरह। जुल्मत से कह दो कि डेरे उठा ले, ये भी असल में इसकी भी तावील वाज़े हो सकती है, इसका भी माना वाज़े हो सकता है। असल में आने से पहले की बात हो रही है कि अब होने लगे हैं, यानी अब हैं हर तरफ, यानी अब होने लगे हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जुल्मत को कहा जाने लगा कि अब डेरे उठा लो, इस तरह की ताबीरात। इतना मसला उसमें नहीं है, लेकिन ये भी कि है हर तरफ उजाले उजाले, चारों तरफ उजाला हो चुका, यहाँ बत्तियां हैं। अब ये कहना कि अंधेरे हट जा, अंधेरा है तो हटेगा ना, ये मेरी बात। क्योंकि आला हज़रत ने मतलब फतार रज़विया में बाज़ अशार कर मना किया है कि वो फजूल होते हैं, कोई उसका ढंगड़ा होता नहीं है, खाली वो अल्फाज की वो तरकीब होती है, खूबसूरत अल्फाज, पब्लिक इसमें नारा लगाती है, मजे लेती है।
جو قبر والی بات ہے اس میں اس طرح یہ تھوڑا شعراء کے جو اشعار ہیں وہ تو اس طرح کے ہوتے ہی ہیں نا کہ ان کے قدموں میں گروں گا اور میرا دین و ایمان پوچھے تو میں انہی کی جانب لکیرن کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے. تو اس طرح کے یہ تخیلات اور یہ تمنائیں اس طرح کی ممکن تو ہیں، کیونکہ باقی رہا قبر کا معاملہ تو وہ تو ویسے ہی غیب والی بات ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کس طرح ہوتی ہے اس کے بارے میں بھی علماء نے تفصیل بیان کی ہے کہ پردے اٹھا دیے جاتے ہیں، دیکھا جاتا ہے، خود تشریف لے کر آتے ہیں یا سوال کیا جاتا ہے. بہت ساری اس میں علماء کی جو ہے وہ تفصیل موجود ہے. تو اگر کوئی تمنا کے طور پر اس طرح کرتا ہے کہ اگر یوں ہو، اللہ بہتر جانے. صلو علی بزرگوں الحبیب. کے کلام میں عام طور پر یوں وہ وسوسے نہیں آتے. مرحبا. جی سوال سوشل میڈیا سے سوال ہے. نہیں امیل سنت کچھ آپ کے پاس ہے کچھ؟ میرے پاس تو وہ جواب دیجیے ابھی نہیں، تھوڑا میں سوالات ہم چاہ رہے تھے لے کہ لیں. کافی فیس بک کے بھی سوالات جمع ہو گئے، ریکارڈڈ سوالات بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں، تو سوالات چلائیں. ذیشان شاہ پوچھ رہے ہیں میت کو قبرستان لے جاتے وقت جنازے کے آگے چلنا کیسا؟ آداب میں سے یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے لوگ چلیں، جنازہ سب سے آگے ہو. اگر آگے چلنا ہی ہے تو اتنا دور چلے کہ وہ جنازے کے جلوس میں شامل دیکھنے والے کو نہ لگے. جی یعنی ہمارے نزدیک احناف کے نزدیک یہی ہے کہ ادب یہی ہے کہ جنازے کے پیچھے چلے. جی اور آگے چلنا ہے پھر دور دور ہو، یہ بھی لکھا ہے دور ہو کہ مطلب ساتھ میں وہ جلوس کے شامل نہ لگے یا اس طرح کا ہے کچھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زاہد علی کا سوال ہے شکر خدا کی عادت کس طرح اپنائی جائے؟ رب کی کافی نعمتیں حاصل ہونے کے باوجود شکر کرنا بھول جاتے ہیں. اس کے فضائل پڑھنے چاہیے. وہ شکر کے فضائل نامی کتاب مکتبۃ المدینہ چھاپی ہے، 150-200 پیج کی ہوگی، تو یہ ضرور لیں، سب کو پڑھنا چاہیے. تو پڑھیں گے نا فضائل تو ذہن بنے گا شکر ادا کرنے کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، یا سیدی یہ ارشاد فرمائیں کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، خاص کر افطار کے بعد ماہ رمضان میں، اور ان کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہاضمے کے لیے بہتر ہوتی ہے. تو کیا یا سیدی یہ پینا درست ہے کولڈ ڈرنک؟ اس کے فائدے ہیں، اور اگر اس کے کچھ نقصانات ہیں تو برائے کرم وہ بھی ارشاد فرما دیجئے. وہ اپنے رسالے میں لکھے ہوئے کولڈ ڈرنکس، بلکہ ٹھنڈا پانی جو ہوتا ہے نا، سخت ٹھنڈا پانی، یہ بھی مضر ہوتا ہے، نقصان دہ ہوتا ہے. تو کولڈ ڈرنکس میں تو پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ہوتی ہے. اب تو نیٹ پر اس کا کافی آپریشن ہوتا رہتا ہے، اس لیے کولڈ ڈرنکس تو نہ پی جائیں. اسی طرح میں تو یہ لال پیلے شربت جو پیتے ہیں، میں یہ بھی مطلب منع ہی کرتا ہوں کہ اس کو بھی نہ پیا جائے. اس وقت ہرس ایسی ہوتی ہے کہ بندہ رہ نہیں سکتا، پی لیتا ہے، پھر گلا پکڑا گیا، کھانسی ہو گئی، بخار چڑھ گیا، کچھ ہو گیا، تو پھر وہ رمضان شریف کے مبارک دنوں میں ذرا آزمائش زیادہ ہوتی ہے، دل جلتا ہے. عید کے ٹائم پہ ہو گیا تو اور آزمائش. تو بہرحال یہ کہ ان سے کولڈ ڈرنکس سے تو ہمیشہ بچنا چاہیے. شوگر بم ہے یار. 7 چمچ غالباً 7 چمچ چینی ہوتی ہے اس میں، تو بہت چینی ہوتی ہے اس میں. ایک بوتل میں جو ڈبا آتا ہے نا، شاید 350 گرام کا ہوتا ہے، 250 گرام کا، 250 ml لکھا. تو بہرحال یہ کہ شوگر اس میں کافی ہوتا ہے، چینی کافی ہوتی ہے، تو یہ مطلب نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس میں کیا کیا کیمیکلز ہوتے ہیں. وقتی طور پہ سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے، بس پھر وہ نقصان. بوتل یعنی کولڈ ڈرنک کا سب سے بڑا پارٹ، حصہ مٹھاس ہے. خاصیت تو چینی یعنی شوگر سے حاصل کی جاتی ہے، یا سکرین سے، جو کہ سفید رنگ کا نقلی پاؤڈر ہے،
और चीनी से तकरीबन 300 से लेकर 500 गुना मीठा होता है ये सिक्रीन। जिन बोतलों में चीनी इस्तेमाल की जाती है उनमें चीनी की मिकदार काफी ज्यादा होती है, जैसा कि फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा 712 पर है। 250 मिलीलीटर की एक बोतल में तकरीबन 7 चम्मच चीनी यानी शुगर होती है। चीनी वाली कोल्ड ड्रिंक पीने से दांतों और हड्डियों को नुकसान पहुंचने, खून में शुगर की मिकदार बढ़ने, दिल और जिल्द यानी स्किन के अमराज पैदा होने के इम्कानात बढ़ते हैं। नीज इससे मोटापा भी आता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मेरा ये सवाल है कि क्या परियों का वजूद होता है? अगर परियों का वजूद होता है तो वो इंसान से शादी कर सकती हैं? परी के ताल्लुक से परी मर्द भी होता है, औरत भी होती है। ये मलफूजात आला हज़रत में तज़किरा है परी का। परी खूबसूरत जिन्नी को बोलते हैं, जिन्नी को परी बोला जाता है। यानी मुख्तलिफ इसके जुज़ियात भी मौजूद हैं कि जैसे निकाह के बाब में भी इसका तज़किरा मौजूद है, गुस्ल के बाब में भी इसका तज़किरा मौजूद है। तो जो अरबी किताबें हैं वहाँ पे जिन्नी के अल्फाज हैं और उसी का तर्जमा बहार शरीयत वगैरह के अंदर परी किया गया है। इसी तरह आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने भी जो है वो मलफूजात के अंदर परी का तज़किरा किया, वो जिन्नियाँ ही थी। और उसका तज़किरा अल-इसाबा के अंदर भी हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने किया है। तो जो जिन्नी होती है उसी को परी बोला जाता है। अमूमी मर्द का भी तज़किरा है मलफूजात में शायद। अल्लाह बहरहाल परी का वजूद तो लिखा हुआ है किताबों में और ये बता रहे ना कि ये जिन ही की किस्म है, समझो खूबसूरत जिन्नी। अब ये जिन्नी को देखा किसने, खूबसूरत और बदसूरत, कैसे पता चले? यानी एक तसव्वुर बैठा हुआ है इस हवाले से कि वो जो परी का है ना, दो पर और वाइट कलर के और ये इस तरह के तसव्वुर ज़हन में बैठे हुए। वरना जो जिन्नी का तर्जमा है वो हमारे यहाँ आम तौर पर अरबी किताबों में जिन्नी लिखा हुआ है और उसी का तर्जमा बहार शरीयत के अंदर परी किया हुआ है। जिन्नी सूरत का कोई तस्करा नहीं है। जिन्नात यानी जिन की औरत, जिन्नी। आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह की खिदमत में अर्ज किया गया, हुजूर क्या जिन्नो परी भी मुसलमान होते? इरशाद, हाँ। और इसी तज़किरे में फरमाया कि एक परी मुशर्रफ ब इस्लाम हुई और अक्सर खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ करती थी। एक बार अरसे तक हाजिर न हुई। जब हाजिर हुई सबब दरियाफ्त किया। अर्ज की, हुजूर मेरे एक अजीज का हिंदुस्तान में इंतकाल हो गया था, वहां गई थी। राह में मैंने देखा कि एक पहाड़ पर इबलीस यानी शैतान नमाज पढ़ रहा है। मैंने उसकी ये नई बात देखकर कहा कि तेरा काम तो नमाज से गाफिल कर देना है, तू खुद कैसे नमाज पढ़ता है? उसने कहा शायद रब्बुल इज्जत मेरी नमाज कबूल फरमाए और मुझे बख्श दे। तो यहाँ परी के मर्द होने का तस्करा नहीं है ना? तो मेरी हो सकता है कोई गलतफहमी होगी या कहीं और पढ़ा होगा, अल्लाह बेहतर जाने। तो यही समझ में आता है कि परी माने जिन्नी। यानी जुजिया भी बहार शरीयत में यही है कि मर्द का परी से और औरत का जिन से निकाह नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, परी से निकाह नहीं हो सकता। आला हजरत ने किसी शेर में भी जिक्र किया है परी का। या सय्यदी, क्यों ना ज़ेबा हो तुझे ताजवरी, तेरे ही दम की है सब जलवगरी, मलको जिन्नो बशर हूरो परी। इसमें परी का जिक्र किया है। माशाअल्लाह। जान सब तुझ पे फिदा करते हैं, जान सब तुझ पे फिदा करते हैं। क्या बात है। क्यों न ज़ेबा हो तुझे ताज परी, तेरे ही दम की है सब जलवागरी, तेरे ही दम की है सब जलवागरी, मलको जिन्नो बशर हूरो परी, जान
کرتے ہیں جب تجھ پہ فدا کرتے ہیں. میں محمد ابراہیم یو کے سے عرض کر رہا ہوں. حضرت صاحب سے سوال ہے، بہت سے لوگ جو تراویح پڑھتے ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں اور جب امام رکوع میں جانے لگتا ہے تو بھاگ کر جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم بتائیں. جو نماز کے لیے جیسے بیٹھے رہتے ہیں کہ امام صاحب رکوع میں جائیں گے تو ہم چلے جائیں گے، تو سستی سے جو بیٹھتے ہیں نا، یہ مطلب ان کا سستی سے بیٹھنا جو ہے نا یہ ناجائز و گناہ ہے، کیونکہ یہ منافقوں سے مشابہت ہے. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کے لیے تو ہارے جی سے. یہ علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو ناجائز و گناہ لکھا، مکروہ تحریم لکھا. بہار شریعت میں بھی لکھا ہے جائز نہیں اس طرح بیٹھے رہنا. فرضوں میں بھی لوگ کرتے ہوں گے سستی، تو فرضوں میں بھی اس طرح بیٹھے رہنا کہ مطلب امام رکوع میں جائے گا تو شامل ہو جاؤں گا، تو یہ بھی سستی کی وجہ سے اگر بیٹھا ہوا ہے تو گناہ گار ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آپ کو کچھ دکھائیں؟ آئیے کچھ دکھاتے ہیں. یا اللہ 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 یا منہ میں پانی آتا ہے نا، سبزیاں دیکھ کر منہ میں پانی آتا ہے. اگر نیت کروائے کون کون سبزیاں کھائے گا تو شاید اپنے سے نہیں کھائی جاتی. یہ کیا کرنا ہے دکھا کر؟ کیا آپ نے کوئی اب دکھا سوالات کے چلائیں گے؟ نہیں، دکھا کر کیا کرنا ہے؟ دکھا کر اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ ہے کیا. کل تو بتایا تھا نا میں نے، بتایا تھا، لیکن یہ سبزی کے حوالے سے کچھ ہمیں فوائد حاصل ہوں، ہمیں کیسے سبزی کی طرف رغبت ملے. جیسے آپ نے ابھی خود فرمایا کہ منہ میں پانی آیا، کیا آیا، لیکن کھاتا کون ہے؟ ابھی ہم سے تو کچی سبزیاں ہی ہوں، وہ بھی اب آپ کھا بھی رمضان میں بھی دکھا رہے ہیں، سحرین افطار میں ایک طرف آپ، ابھی ادھر تو مطلب دسترخوان پر تو بھرمار ہے نا، اور ہم دکھا رہے ہیں سبزی نے پھل. اور تو ایسے میں اب یہ کچھ رغبت کیا، کس طرح یہ سبزی کی طرف رغبت ہو؟ نہیں ہوں کھانے میں تو اس کی رغبت تھوڑی ہوتی، بھاوتی تھوڑی ہے، کھانا پڑتا ہے، وہ دوا کی طرح کھاتے ہیں. آپ نے ایک دفعہ بہت پیاری بات کی تھی بابا، کہ جب بیماریاں لگتی ہیں نا، اور بیماریوں کے بعد جو اس کے علاج کی جو تکالیف ہے نا، یہ بھی ہے. اس علاج کی تکالیف سے یہ جو ہے نا، یہ تو تکلیف ہی کیا ہے، مطلب بندہ اگر سمجھ جائے تو بات تو اپنے بہت پتے کی تھی. یہ ارشاد فرمائیے کہ جس طرح یہ سبزی یعنی سلاد آپ نے کھایا، تو یہ کھاتے کھاتے ساتھ میں کھانا کھا سکتے ہیں یا پہلے سلاد کھانا مکمل کر کے پھر دیگر جو کھانا ہے وہ کھائیں؟ ہاں، جو مطلب یعنی کہ علاج بالغذا کی ترکیب کر رہا ہے، غذا سے علاج، تو اس کے لیے طریقہ کار یہی ہے کہ وہ پہلے یہ سبزیاں کھائے، جس کا کل بھی وزن ہم نے بتایا تھا انٹو 5 سبزیاں انٹو 5 کھانی ہوتی ہیں. یعنی اگر انہیں جتنا وزن ہے نا تو پر کلو 50 گرام وزن کا. اگر 80 کلو وزن ہے تو 400 گرام سبزیاں، یہ کم از کم 4 قسم کی مطلب اس میں وہ سبزیاں ہوں. جیسے کھیرا ہے،
खीरा ककड़ी तो गालिबन एक ही फैमिली है, तो खीरा है, टमाटर है, ये ककड़ी और खीरा शायद एक ही है। खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, पत्तों वाली गोभी है, फूल गोभी है, ये सब खा सकते हैं जो खा सकें गालिबन। तो इसी तरह पुदीना और आलू उबला हुआ खा सकते हैं, कच्चा नहीं खाया जाएगा आलू। और कम से कम 4 तरह की पत्तियां हो, और ये भी मतलब यानी कि जैसे कि 80 किलो वजन है उसका बंदे का, तो कम से कम 80 ग्राम हो, है ना, 4 तरह की पत्तियां 80 ग्राम। तो पुदीना है, धनिया है, कड़ी पत्ते हैं, सलाद के पत्ते हैं, इसमें ये डालनी है 4 किस्म की पत्तियां, मुझे याद पड़ता है 4 किस्म की पत्तियां डालनी है, अगर मैं भूला नहीं हूं तो वल्लाह आलम। तो बहरहाल ये कि इस तरह हम करते हैं, मतलब ये पत्तियां तो ये खाएं। अब खाना खाना है तो ये पूरी खाने के बाद फौरन अब दूसरा खाना खाए, गैप नहीं आना चाहिए बीच में। आप बोलोगे अभी खा लेता हूँ फिर तरावी पढ़ के मैं खाना खाऊंगा, तो ये बड़ा गैप हो गया ना, ये नहीं चलेगा, फिर वो उसके वो फायदे नहीं होंगे। और जो मतलब इलाज के लिए नहीं कर रहा बल्कि वैसे ही कर रहा है, तंदुरुस्त आदमी है, तो बीमारियों से तहफ्फुज तो इसमें है कि इस तरह के एक अमरीकी डॉक्टर कॉलिन कैम्बल की तहकीक के मुताबिक 61 बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं, ये इसी से है ना, 61 बीमारियां, 61 बीमारियां कंट्रोल हो सकती हैं। मसलन ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, गुर्दे के अमराज, यूरिन इन्फेक्शन, मैदे की, पेट की मुख्तलिफ बीमारियां, अल्सर, कब्ज, सर में नज़ला जमना, पुराना सर दर्द, जिस्म का दर्द, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, जिगर की बीमारियां वगैरह। तो इस तरह इसके फवाइद हैं, मतलब और हैं मतलब तजर्बा है, फायदे हैं इसके अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसको अगर अपनाएं और उम्र भर चलाएं इसको, तो इंशाल्लाह बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। कब्ज होने का तो कोई इसमें तस्वुर भी नहीं है, फिर बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आता कब्ज कैसे हो, कोलेस्ट्रॉल कैसे जाए, जब ये धक्का मार मार के भगा देंगी बहुत सारी बीमारियों को। शुगर कैसे जाएगा ये खाने से, ये खाता रहेगा तो शुगर होने की भी कोई सूरत नजर नहीं आ रही। तो ये दोपहर को भी जैसे खाना है तो ये पहले सब्जियां खाए, इसके बाद खाना खाए, लंच, फिर डिनर करना है, पहले सब्जियां खाए फिर डिनर कर ले, जो भी जो घर का खाना है ये खा ले, अल्लाह करेगा तो आपको बहुत फायदे होंगे। लंच और डिनर। ये बताइए कि जैसे आजकल ज़रा रमज़ान शरीफ है, तो अगर इफ्तार में पहले सब्जियां खा लें और फिर कबाब, समोसे, ये सब इजाज़त मिल जाएगी? देखो अब सर दीवार में मारेंगे तो आप बोलोगे मैं कपड़ा मजबूती से लपेट लूं तो फटेगा कि नहीं फटेगा, ट्राई कर लो। तो कबाब, समोसे खाने, पराठे खाने, पिज्जे खाने, और ये अचरे कचरे आप खाए, बोले ये पुदीने की पत्तियां सबको रेस करा दें, भगा दें, तो ये जरा मुश्किल हो जाएगा। इसका तजर्बा कर ले फिर पता चलेगा। तो बाहर लेके तली हुई चीजें तो वैसे ही नहीं खानी, कबाब, समोसे, पकोड़े, कभी इंसान है दिल करता है तो एक आध पीस खा लिया, ये जो बेदर्दी से खाते हैं ना, ये वैसे ही नुकसानदेह, चाहे सब्जियां खाएं या ना खाएं। और ये रमजान शरीफ ही में नहीं, इसके अलावा भी तली हुई चीजों से जितना बचेंगे, बल्कि ये जो इलाज जो करते हैं, इलाज बिल ग़िज़ा, इन लोगों के यहाँ तो वैसे पक्की हुई चीजें भी कम से कम खानी होती है, जितना पक्की हुई चीजें बच सकता है बचे। तो जब पक्की हुई चीजें खाने से वो बचने का कह रहे, तली हुई चीजें जो कहाँ उनके यहाँ अलाउड होंगी। पापा सलाद पे नींबू निचोड़ सकते हैं, सलाद पर नींबू निचोड़ सकता है, काला नमक जरूरतन छिड़क सकता है,
प्याज डालने के हवाले से आप क्या? प्याज, कच्ची प्याज का मैंने कल भी अर्ज किया था कि ये मुंह में बदबू करेगी। इसके फवाइद है अपने, जब कच्ची प्याज वगैरह डालेंगे तो, मगर मशवरा है कि ना डालें, ताकि आप या वाजिद हो बिस्मिल्लाह वगैरह पढ़ सकें। सवाल आया है कि आजकल सब्जियां भी तो गंदे पानी से उगाई जाती हैं, तो क्या ये भी फायदा देंगी? तो ये जो जितनी भी पैदावार है, असल खाद में मेन उनसुर तो गंदगी है। अब तो वो खूबसूरत सफेद सफेद केमिकल डालते हैं, वो खाद, आर्टिफिशियल खाद। ये जो गंदगी होती है ना, मेन गंदगी इंसानी, ये इसके हिसाब से बेहतरीन ग़िज़ा है। तो ये बहरहाल मिट्टी जो होती है उसमें ये मिक्स होती है। ये जो गंदा नाला होता है ना, आपने गटर बगीचा सुना होगा अपने बाबुल मदीना में, ये जहाँ मतलब ये जमता है ना, वो खाद तो बिकती है, कीमती होती है, कीमती है जब ये बिकती है। तो एक तो होता है ना ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक ग़िज़ाएं जो है ना, ये इन्हीं असल खाद की बनी हुई होती है, असल खाद में उगाई जाती हैं, जो महंगी होती हैं, और बाकी आर्टिफिशियल खाद की उसके मुकाबले में सस्ती होती है। अब ये क्या है, मिलावट का दौर, धोखे का दौर, ऑर्गेनिक देगा कौन? ऑर्गेनिक मिलती है, यहाँ भी मिलती है, और मदीना में भी सुना मिलती है, सुपर मार्केटों में जो बड़ी बड़ी मार्केटें होती हैं, और उनमें मिलती होंगी ऑर्गेनिक। तो जिस मार्केट का एक मेयार होगा ना अच्छा, उसमें हो सकता है कि और ओरिजिनल मिल जाती होगी, बाहर मुल्कों में भी मिल जाती है। डॉक्टर साहब कुछ प्लस करना चाह रहे हैं? पापा, ये जो यूरिया बनाया जाता है फसलों में डालने के लिए, वो बेसिकली इसी चीज़ से तो बनता है, इन्हीं चीज़ों से तैयार होकर जो फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। जब ये चीज़ें इकट्ठी हो जाती है ना, इनका एक पूरा प्रोसेस होता है, वो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस कहलाता है। वो प्रोसेस हो जाता है तो वो यूरिया बन जाता है। अब यूरिया ले लिया गया तो वो यूरिया फिर ये फसल वगैरह के लिए फायदेमंद, मगर वो एक आर्टिफिशियल खाद है, वो आर्टिफिशियल वाले लेते हैं, लिया कंसेप्ट यहीं से है, ठीक बनता है वो यूरिया इसी से ही है। आपकी एलोपैथिक भी ओरिजिनल चीजों से दवाएं बनती है जी, और आप लोग बोलते हैं नुकसान करती है। तो इसी तरह ये यूरिया जो है ना, इसमें भी आखिर इसकी प्रोसेसिंग है, एक इसका भी मतलब अमल है, जिसमें मतलब चेंजेस आ जाएगी। और जो असल खाद है, वरना तो ऑर्गेनिक ना होती ना, कि असल खाद असल है, नकल खाद नकल है। बेहतरीन बिरयानी हम खाते हैं, वही चीज जब छुट्टी करती है उसकी सूरत ही अलग होती है ना, अहकाम भी उसके अलग होते हैं। पानी पीते हैं, उसके अहकाम भी अलग हो जाते हैं। तो ये यूरिया, मैंने एक पढ़ा था आर्टिकल बहुत पहले, तो जैसे आम है ना, पहले तो आम हमने देखे, बच्चे थे ना, मटकी में आम आते थे इतने इतने, अभी आम भी बम की तरह हो गए। अभी वही यूरिया और तरह तरह के केमिकल से ये फुलाते हैं। आम क्या, मेरे इतने बड़े बड़े तरबूज देखे बंदा उठा भी नहीं सकता, मेरे ऐसा तो हिला भी नहीं सकता। ओ इतना बड़ा मन या मनों का तरबूज, अब ये पता नहीं कौन लेता होगा, कोई ऐसे रमजानों के मौके पे बिकते होंगे जो मस्जिदों में खिलाते हैं, मतलब इफ्तारी। तो ये यूरिया से और ये तरकीबें करते हैं लोग। तो मैंने आम का पढ़ा था कि इस तरह की खादों से ये डालते हैं और इससे कैंसर का अंदेशा रहता है। इसी तरह एक डॉक्टर ने बहुत पहले मुझे कहा था, अब तो वे डॉक्टर काफी एजेड हो गए होंगे, कि ये कैंसर जो है ना, ये इस आर्टिफिशियल खाद का तोहफा है, कि ओरिजिनल ग़िज़ाएं हमको मिलती ही नहीं है, ओरिजिनल खाद की ग़िज़ाएं। तो अब ऑर्गेनिक का एक सिलसिला चला है दुनिया में, और खाने वाले खा रहे हैं। अनाज भी मिलता है ऑर्गेनिक, दालें भी मिलती हैं, चावल भी मिलता है, सब्जियां भी मिलती हैं, फ्रूट भी मिलते हैं ऑर्गेनिक। अब अल्लाह बेहतर जाने, आप जैसे आप लोगों का भी माशाअल्लाह अपनी मालूमात है, जैसे रहनुमाई फरमाए। नकली और असली में फर्क तो अंडरस्टूड होता ही है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। आप क्या फरमाते हो हुजूर सब्जी और फल के हवाले से, जो 2 दिन से हमारा यहाँ तस्करा हो रहा है? माइक खोलना पड़ेगा। सब्जी और फल के हवाले से तो अब ये रिकमेंडेड है, जैसे भी ये प्रमोट किया जा रहा है कि हम अपनी डाइट के अंदर सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अगर एक एक सब्जी की कंपोजिशन अगर हम स्टडी करें या पढ़ें तो उसके अपने अपने विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं। अब जैसे
जो गर्मी के अंदर सब्जियां आती हैं उनके अंदर पानी की मिकदार ज़्यादा होती है, वो उसी मिकदार के साथ मौजूद होती है जो गर्मी के अंदर हमारा इलेक्ट्रोलाइट ज़ाया हो रहा होता है। सब्जियां खाने के जो एक मेजर जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है उसके अंदर फाइबर बहुत मिकदार के अंदर होता है, और फाइबर जिन डाइटों के अंदर कम होता है उसकी वजह से ये कब्ज़ की बीमारियां और जो शरियानों की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, ये ज़्यादा होने का रिस्क है। और सब्जियों के अंदर पोटेशियम की कंपोजिशन भी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से जो दिल के अमराज हैं, बिलखुसूस ब्लड प्रेशर और इस तरह के अमराजों में प्रोटेक्शन मिलती है और सेफ्टी होती है। एक स्टडी है 25 साल पुरानी है, उस पर स्टडी किया गया, हर लोगों के पैटर्न का खाने का स्टडी लिया गया। वो लोग जो ज़्यादातर सब्जियों का इस्तेमाल करते हैं उनके अंदर दिल के अमराज, फालिज के अमराज, इनके अमराज का होने का रिस्क बहुत ज़्यादा कम है। जो लोग ज़्यादातर गोश्त और इस तरह की डाइट के ऊपर रखते हैं वो उनके अंदर ये रिस्क ज़्यादा आएंगे। ऐसे ममालिक पाए जाते हैं दुनिया में जी बाबा कि जहाँ सब्जियों का इस्तेमाल ज़्यादा है, गोश्त का इस्तेमाल बराए नाम होता है और गिज़ाओं का इस्तेमाल बराए नाम, डॉक्टरों का आता पता कम, एलोपैथिक और ये से दूर रहते हैं लोग। तो 100 सवा 100 साल तक वो जीते हैं, तंदुरुस्त होते हैं। और हैं ऐसे मुल्क दुनिया में जी बाबा जहाँ ये इंतजाम है सब्जियों के और लोगों का ज़हन है वहाँ सब्जियां भी और दालें भी, दालों के भी अपने फायदे हैं। और सब्जियां जो जिस तरह भी आपने अभी हमने देखा ये इस फॉर्म में खाएंगे तो इस फॉर्म में खाना सब्जी ज़्यादा फायदेमंद है बनिस्बत इसके, इसको बॉयल करें या कुक करें या वैसा करें, उसमें जो इनके फायदे मिनरल्स हैं, विटामिन है, इन्हें ज़ाया होने का रिस्क है। अच्छा, फिर बॉयल करने के भी उसूल है कि भाई इतनी हीट इसको मिलनी चाहिए, तो अब इसका तो पता ही नहीं होता ना, तो चूल्हा जाने पतीली जाने। एक सब्जी का जूस आपको याद होगा बनता था जिसमें कच्ची सब्जियां होती थी, फिर इसका पानी और ये एक सूप बनता था, सब्जियों का सूप। तो ये अगर सब्जी, ये जो सब्जियां आप इरशाद फरमा रहे हैं, मैं भी अर्ज करता हूं, यही सब्जियों का अगर सूप बनकर ये सूप के साथ अगर ये सब्जियां ले ली जाएं तो डॉक्टर सलमान भी कुछ इल्जुल फरमा रहे हैं, आप भी वहाँ कुछ इरशाद फरमा रहे हैं। मैं ऐसे भी इस पर अर्ज कर रहा था, आजकल एक नई थेरेपी शुरू हो चुकी है, वो डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी है। डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी को ये बोला जाता है जैसे हमारे जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल या इस तरह की चीज़ें जमा होती गई। ये डिटॉक्सिफिकेशन दो ही सूरतों में ख़त्म हो सकती है, एक तो अगर आप रोज़े की हालत में हो, एक रोज़ा रखते हैं या रोज़े की हालत में होंगे तो फ्री रेडिकल आपके जिस्म में से ख़त्म हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी रीजनरेट हो रही होती है, यानी बेहतरी की तरफ आती है। अब ये सब्जियों का जो जूस आपने बताया, जूस बना लेते हैं, जूस बना लेते हैं, तो ये जूस अब बिकता है, अब ये आ गया प्रमोट है। मैं जूस की तरफ आपको, मेरा सवाल जूस का नहीं है, यानी कि सब्जियां होंगी, ये उसका होगा सूप, सही पानी जैसे होगा, लेकिन वो सब्जी जैसे सब्जी डालकर कच्ची सब्जियां हैं उसको पानी में डाल दिया और उसका सूप बना लिया, जिस तरह मुर्गी का गस्साला होता है, चिकन का सूप। तो ये ऐसे बहुत अच्छी थेरेपी, इसको बोलते हैं डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपी। ये वही है, ये वही है। अच्छा, इसी ताल्लुक से कॉल है एक जी, कि सब्जी को इस तरह लिया जाए। जी, मैं ये अर्ज करनी थी कि ये तमाम सब्जियां जो फरमा रहे हैं, इनको सबको इकट्ठा करके ब्लेंड करके उसको लिक्विड बना के ले सकते हैं कि ये इसको खाना ही जरूरी है? जी बाबा, इसका मतलब है कि जूस का भी तरीका है, मतलब, लेकिन ये जो जैसे मैं सब्जियां खाता हूँ जो आप देखते हैं, इन सब का बिल्कुल वो जूस बनाकर पिएंगे तो वो फायदा हासिल नहीं होंगे, हो सकता है नुकसान भी हो। तो इनके मतलब तरीके हैं। अब जैसे वो पत्तों, ये ग्रीन जूस, इन्हें इसका एक तरीका ये कि 4 तरह की पत्तियां 50-50 ग्राम ले लीजिए, मसलन हरा धनिया, पुदीना, कड़ी पत्ता, सलाद के पत्ते, पालक के पत्ते भी डाल सकते हैं, लेकिन जिसको किडनी स्टोन पत्थरी हो गुर्दे की, या किडनी गुर्दे का कोई प्रॉब्लम हो, मर्ज हो, वो पालक के पत्ते ना डालें। अगर 4 किस्म की पत्तियां ना मिल सके तो धनिया पुदीना के साथ 100 ग्राम लौकी शरीफ, कद्दू शरीफ और 100 ग्राम खीरा शामिल कर लें। जिसे यूरिक एसिड का मसला हो या गुर्दे में पत्थरी हो,
वो लौकी शरीफ खीरे के साथ, लौकी शरीफ और खीरे के साथ सेब या नाशपाती या अमरूद को भी शामिल कर ले उस जूस में, और 4 से ज्यादा पत्तियां ले तब भी अर्ज नहीं है। तो वजन अंदाजे से नहीं, बल्कि जो वजन बयान किया उसको तराजू से तोलना होगा। तो बावर्ची खाने के तराजू आते हैं छोटे छोटे मखसूस, वो रखना चाहिए, उससे तोल ले। फिर इन पत्तों को एक गिलास में पानी में डाल दीजिए, उसमें 10 ग्राम अदरक, थोड़ा सा काला नमक डालिए और आधा लीमू निचोड़ लीजिए। फिर ये सब जो है इसको ग्राइंड कर लीजिए और बारीक कपड़े से छान दीजिए। अब इसके पीने का तरीका ये है कि सुबह नाश्ते से पहले या इफ्तार में खाने से पहले, रमजान शरीफ में जैसे, या रोजा हो, तो रोजा है तो इसके 3 घूंट ले लीजिए और इफ्तार कर लीजिए, सारा ना पिए। हमारा लिए कि इस जूस में ये एहतियात करनी है कि पानी की तरह एक साथ नहीं पीना, बल्कि 15 मिनट में थोड़ा थोड़ा करके पीना है, वरना पेट में खराबी हो सकती है। इसके अपने फवाइद। वो जो मालूमात मिली थी उसमें ये कि मुंह के छाले और मैदे की गर्मी वगैरह और कब्ज वगैरह के जो मामलात होते हैं और सर दर्द की, इस जूस से ये भी फवायद हासिल होते हैं कि वो कंट्रोल हो जाते हैं। शुगर के हवाले से भी मुफीद है, और भूख ना लगना उसमें भी मुफीद है, हाजमेदार है। हाजमेदार। और भी कई बीमारियों से प्रोटेक्शन भी हासिल होगा इंशाअल्लाह। जब पहली मरतबा मैंने पिया था, तो पहली मरतबा मैंने इसको इस्तेमाल किया तो कई सालों के बाद, भूख तो वैसे लगती थी, तो कई सालों के बाद वैसी वो चमकदार भूख लगी थी कि जैसे वो पॉलिश नहीं किया जाता किसी चीज़ को, इस तरह गोया कि मैदा पॉलिश हुआ और भूख ठीक ठाक इसी जूस पीने के बाद लगी थी। जी डॉक्टर मैदा साहब, पॉलिश कैसे होता है, कितनी बार में होता है, ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन भूख बहुत लगी इनको। अब पेट का कुफले में देना मजा देगा ना, अब भूख से कम खाए बंदा। हाँ, बहुत अच्छी चीज है ये जो बयान की गई इंशाअल्लाह। जी डॉक्टर कामरान, इसमें जो अभी आसिफ भाई ने फरमाया है कि भूख बहुत लगी है उनको, तो जैसे बापा ने अभी इसमें फरमाया था कि जैसे ही आप सलाद वगैरह इस्तेमाल करें तो फ़ौरन खाना खा लें आप, तो इसमें एक हिकमत यही नज़र आती है कि अगर आप उसको डिले करेंगे तो आपकी भूख यकीनन बढ़ेगी, तो आपके वो सब्ज़ी खाने के फ़वाइद हासिल नहीं कर पाएंगे, भूख बढ़ जाएगी तो फिर लामाला फिर आप ज़्यादा खाना खा लेंगे तो फिर वो ओवर ईटिंग के ज़मरे में चले जाएगा, तो फिर आपको उसके फ़ायदे की जगह नुकसान हो सकता है इसका। तो बेहतर तो यही है कि आप साथ ही उसके साथ ला लें, जैसे आपने फरमाया है कि आप सब्ज़ी लें या फ्रूट लें, उसके फ़ौरन बाद खाना खा लें, गैप ना करें। तो उसमें एक फ्रूट के बाद नहीं है ना, सब्जी के बाद है, सब्जी के बाद खाना ही नहीं तो है। ये कयास है, ये इसके माहिरीन बता सकते हैं कि इसकी क्या हिकमत इन लोगों ने वो तय की है, क्यों नहीं, किया है, वापस खाना मुत्तसिल खाना है। सब्जी के बाद मैं इसमें ये बात कर रहा हूँ कि सब्जी बेसिकली एपिटाइज़र का काम करती है। जैसे अब आप कहीं जाते हैं तो वो भूख चमकाने के लिए आपके सामने कुछ सलाद वगैरह रख देते हैं, कहीं पे भी स्टार्टर जिसको हम कहते हैं वो दे देते हैं, तो वो एपिटाइज़र का काम करती है। तो अगर आप वो फ़ौरन गैप कर देंगे, 15-20 मिनट का 25 मिनट का गैप कर देंगे तो आपकी भूख बढ़ जाएगी यकीनन। लेकिन अगर आप सब्ज़ी के फ़ौरन बाद वो इस्तेमाल कर लेते हैं, खाना वाना खाना शुरू कर देते हैं, तो यकीनन आप भूख से कम खाना खाएंगे और उसमें आप कम ही पेट के अंदर गिजा जाएगी। तो मुझे लगता है कि अमीर रसूल का तजर्बा शायद इसके कुछ खिलाफ जा रहा है। सब्जियों को एकदम जूद हजम ना समझा जाए, जूद हजम नहीं होती है ये, जो मैं समझ सका हूँ, ये मतलब कचरों को धक्के मारती है, भगाती है, फाइबर है खुद अपना इसको मतलब यानी कि हजम होने में ये भी थोड़ा वक्त लेती है। तो 15 मिनट में हजम हो जाए और भूख चमक जाए और वो पिज्जे पराठे निगल ले बंदा जोश में आकर, तो इसका चांस नजर नहीं आ रहा। ये शायद अच्छा, ये जूस है ना, ये बगैर छाने भी पी सकते हैं, छानना जरूरी नहीं है, बल्कि छानने से तो कई अज्जा इसके चले जाएंगे। हाँ, तो बगैर छाने भी बाद वो झाग वगैरह शायद ऊपर बन जाती है, तो छानेंगे तो वो झाग शायद अलग हो जाती है, तो उससे वो नफ्स को पीने में रुकावट कम होती है, शायद वो वजह हो। आसानी पीने में।
अच्छा, हमारे गुड़ भी डाल ये इरशाद फरमाए कि अब जैसे बंदा ठीक हो गया, उसने इलाज बिल ग़िज़ा कर लिया, पेट वगैरह सब ठीक हो गया, अब तो पिज़्ज़ा वगैरह खा लेना। अब ये कि फिर अगर बेइत्तेदाली करेगा, बदपरहेजी करेगा, तो दोबारा कोर्स करना पड़ेगा। ज़ाहिर अंडरस्टूड है, तो ये हर दवा का है कि कोई दवा से गारंटी थोड़ी कि अब जिंदगी भर इसको वो बीमारी नहीं होगी, इसी को तो कोई गारंटी नहीं देगा। तो इसलिए मतलब ये कि अपनी ग़िज़ाओं में इन चीज़ों को शामिल रखा जाए। अगर इसी तरह ये जिस तरह मैंने अर्ज किया, फलों और सब्जियों को अगर आप खिदमत का मौका देंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। मुझे बड़ी उम्मीद है इससे। देखो आपको, जैसे मैंने कल भी अर्ज किया था कि 30 साल से पहले फायदा बिल्कुल क्विक सर्विस, और 30 साल के बाद जो उम्र बढ़ेगी तो फायदे में कमी आती रहेगी। तो मैंने अपना कहा था कि मेरी उम्र 70 से बढ़ गई तकरीबन, तो ज़ाहिर है ये फायदा आस्ते आस्ते होगा, कम होगा फायदा इस उम्र में, रास्ता भी होगा और कम भी होगा। लेकिन इंशाल्लाह हिम्मत नहीं हारेंगे, लगा हुआ हूं मैं भी। मैं बस इत्मीनान से दीन की खिदमत करना चाहता हूँ। अल्लाह की रहमत है कि मैं आपके साथ बैठा ही हूँ ना यार, अल्लाह का करम है, तो बस बैठा रहूँ, दीन की खिदमत करता रहूँ, आपको मदनी फूल देता रहूँ। ये मुझे कह रहे हैं कि आपने ये कहा है कि फायदा कम होगा, ऐसा नहीं है, फायदा देर में होगा। चलो इनकी मान लेते हैं, होगा देर में होगा फायदा। ये जो जूस देर में होना कम फायदा होगा नहीं कहलाएगा। कम फायदा होना और एक दोनों फर्क है ना, ड्यूरेशन। चलो ठीक, जैसा आप फरमाए, मैं जवान बेटे की मानना चाहिए। मैंने ये भी अर्ज, जबकि बात गलत ना हो, तो मैं हो सकता भूल गया हूँ, फायदा देर में होता है, इससे यूं मत कहना चाहिए। जी हाँ, जज़ाकल्लाह, फायदा देर में होता है। ये इरशाद फरमाइए कि उम्र के साथ साथ ये जो जूस बनेगा, इसको थोड़ा जायकेदार बनाने के लिए अगर शुगर ना हो इंसान को, तो गुड़ वगैरह थोड़ा डाल सकते हैं जायका। शुगर ना हो तो गुड़ भी डाले, खजूरें डाले, 2-1 खजूरें डाल दे, 3 खजूरें डाल दे, ऐसा टेस्टी हो जाएगा यार ये खजूर डालने से। शहद भी मतलब ग़िज़ा ही है, जो असल शहद हो असल, तो ये भी इलाज बिल ग़िज़ा में ये भी मना नहीं है। लींबू निचोड़ना ये मना नहीं, लींबू भी यही ग़िज़ा है, नेचुरल चीज है, इसमें कोई पकाने पकोने का मसला नहीं है। आम ये भी मदीना हो, ऑर्गेनिक होना तो ज्यादा फायदा है। ऑर्गेनिक तो बहुत महंगा मिलेगा और फिर भी असली मिले इसका भी मुश्किल है थोड़ा हमारे यहाँ तो। अंडरस्टूड है को कोई सी वाज़े पहचान भी कहां से बंदा लाए। मैं इतने बड़े बड़े जो कर देते ना आम, और ये खूबसूरत चमकदार अदरक देखे, चमकदार खूबसूरत, और मुरझाया सा अदरक, दोनों में फर्क हो सकता है। मुरझाया जो है ये जो कमजोर सा, ये असली हो। सीधा लहसुन खूबसूरत गट्ठे, और वो लहसुन जो कलियां छोटा सा गट्ठा, तो ये हो सकता है छोटा गट्ठा ये असल हो, लेकिन ये इसके भी मुझे कोई कंफर्मेशन नहीं है। बरसों गुजर जाती हैं, मतलब इस्लामी बहनें पकाते इनकी जिंदगियां निकल जाती हैं। बाद वक़्त इनको वो चीज़ें नहीं पता होती, समझ नहीं पड़ती कि क्या चमकीला ने क्या बगैर चमकीला, तो इसकी क्या वजह होती होगी। तेजाब से धोते हैं, पता नहीं क्या क्या करते। इनको क्यों नहीं पता होता होगा? तो पता हो भी तो कुछ नहीं होता। हाँ, ये आम कुछ नहीं होता। अब पता मदनी चैनल में जो गुफ्तगू हो रही है, जो सुनता होगा उसको समझ तो पड़ती होगी। अब तो यार नेट पर ही हर तरह की मालूमात होती है, लेकिन अब ये भी परफेक्ट नहीं होती। एतमाद तो आंखें बंद करके नहीं कर सकते। आपकी इन तमाम तर मालूमात के पीछे अगर जाती तौर पर इस्तेमाल करना हो तो आप इसमें क्या क्या एहतियातें फरमाते हैं? मैं बाजार जाता ही नहीं। मिसाल के तौर पर आपको किसी चीज के बारे में पता चलता है कि इसके ये फावायद हैं और ये इस्तेमाल करना चाहिए, खाना चाहिए, कोई सी मालूमात फराम हो गई, आपको कोई ऐसा पैकेज मिल गया कि जनाब ये चीज़ें ले तो यूँ हो जाएगा, तो आप सुनकर खा लेते हैं
استعمال میں لے لیتے ہیں کہ اس کے لیے کوئی احتیاطی کچھ تدابیر بھی ہیں آپ کے پاس, کوئی معلومات یا مشورے وغیرہ کے ساتھ اب آگے بڑھتے ہیں؟ جیسی چیز جیسا موقع. میں خاص کر مطلب حکمت کی طرف میرا زیادہ رجحان ہے اپنے علاج کے تعلق سے. ویسے میں نے حکمت پڑھی نہیں ہے تو میں اپنے خلیل بھائی سے زیادہ تر اپنے نظر آتے رہتے ہیں, ان سے مشورہ کر لیتا ہوں. یہ مشورہ دیتے ہیں یا ضرورتاً اپنے استاد سے پوچھ کر بتاتے ہیں, اور ان کی سروس فاسٹ ہے میرے حق میں, تو اللہ ان کو برکت دے. اب تو یہ ماشاءاللہ حکیم بن بھی گئے, انہیں آخری پیپر دے دیے. اب جب سند ملے اور ان کے حکیم صاحب ان کو حکیم قرار دیں تو یہ حاذق طبیب حاذق بن جائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. علاج بالغذا پر بھی میں نے عرض کیا کہ اس کو بھی تم کرو یار, اور طبیب حاذق اس کے بھی بن جاؤ. تو انہوں نے ہاں تو فرمایا ہے اور کوشش میں بھی لگے ہوئے, اللہ قریب بہتر فرما دے گا. آمین. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. خوف خدا و عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ. فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.